apply yourself, you will be able to pick up a lot of things. A lot of these ECGs are original ECGs, so interesting. Now, okay, so I've got nothing, no conflict for this. So the thing is going to be how to approach an ECG. So I'm going to be very basic first, so that you can revise your ECGs, and then we go to what I have, kind of this is my own design, the PQRSTU approach to ECG, and this approach gives you a chance to look at all the lethal conditions that you may come across. And someone working in an emergency department or a short contact with the patient scenario should have these steps so that you don't miss something quite good. And then there's a quiz if you have the stamina by then we can do a few ECGs. So the approach to ECG, but before we go there, remember that heart is an organ which has the ability to beat. That's the message over here. The second message over here is look at the action. Look at the action potentials of the sinus and the AV node. They do not have a plateau phase, they do not have phase zero. Rest of the myocardial action potentials have phase zero, plateau, everything. Now, and these have steep phase 4 depolarization. A steep phase 4 depolarization allows the cell to beat on its own. So the second message is heart may look cells and they can beat on their own. Myocardial cells need an external impulse from outside, and it will be many times the normal before just a pacemaker se jati hai impulse. But so if the sinus dies, the AV node will take over, not the atrium, unless the AV node is also very diseased. If that is diseased, you'll go down the hierarchy on the distributed system. So rhythm में अपने दिमाग में आपने ये बना के रखना है. If I kill the sinus, the junction will take over. Don't look for atrial beats. Okay, so this is how you look at an ECG. Never go with a shortcut. First of all, eyeball. Eyeball क्यों करते हैं? Pattern recognition. We are all pattern recognizers, and the sooner you become pattern recognizers, you become consultants. If you do not recognize patterns, I'm sorry to say that you will remain average. And for that, you need to view a lot of ECGs or whatever you are doing. In everything there's a pattern, and आपके दिमाग में bins हैं, जैसे आपके computer में ना recycling bin, ये bin, वो bin. So if I see narrow complex rhythms, I have a bin. मैंने 5000 narrow complex देखी हुई है तो मेरे दिमाग में set हो जाएंगी. That is why if you give me an ECG in 50 nanoseconds, I will tell you that's normal. That's why because I've spent 30 years looking at ECGs, and 10 years is enough for you to become a consultant. And so that's my pickup. Even a resident in cardiology will pick up the ECG faster. ER people, internal medicine, compared to surgeons, because they don't look at so pattern recognition to see as many ECGs. So every ECG, keep it away, eyeball. If you find an abnormal finding, park it. Do not concentrate on it, and then read the ECG properly. Go with this first question: is the sinus rhythm? Sinus is always the driver. अगर 60 और 100 के बीच में rate चल रहा है, has to be sinus. Then look at the rate axis. Then go to the P wave. We go through all of this. P wave, PQ segment, PQ segment, PR interval, Q waves. ये अंग्रेजी की language की तरह मैं left to right पढ़ रहा हूँ ECG को without a gap. Q waves, QRS duration, J point, J wave, ST segments, P wave, then QT interval, and then the U wave. If you go like that, you will get a lot of information out, and then you synthesize a diagnosis or a differential diagnosis. That's how we approach an ECG. And if you do that, you should not be afraid of. देखिए जिस batsman की cricket की बहुत analogy दी जाएगी, जब boycott होता था उसको कोई डर नहीं होता था. उसके bat and pad में से ball इसलिए नहीं निकलती थी कि he was very proper. He would follow routines. Unlike Mohammad Hafiz, उसको आप एक ही जगह पे 15 दफा आउट कर सकते हैं because the basic training was not right. So never take a shortcut on this. Always remember कि Dale Steyn ने उसको 14 दफा एक ही जगह कैच करवाया था मोहम्मद हफीज को. So we like Jeff Boycott in this regard. So everybody knows कि अगर regular rhythm है तो it's very easy. जिस hard line पे गिरा उसके बाद 300, 150, 100, 75, 50 और do that.
This is for regular rhythm. If the rhythm is irregular, each paper of the ECG is 10 seconds. और 1 मिनट में 6-10 सेकंड होते हैं, तो जितने भी QRS इंटरवल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 and you will have a heart rate very quickly. इसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. There are other ways of doing it. If you want to be more specific, look at the small dabbas between two RR intervals, or two RR, two QRSs, and divide them by 1500 because there are 15 small dabbas in 1 minute and 300 large dabbas in 1 minute. So 300 divided by large boxes or 1500 divided by the small boxes. That will give you an exact number for that RR interval. Now, when we talk of heart, we have to respect that beats are going to be specific. Can I have a vowel? Yes, I can have a vowel. Show of hands, how many of you think, what do you think, sinus rhythm is regular or irregular? Show of hands. यहाँ कोई बाहर नहीं जाएगा. I will not remember. तुक्का लगाओ. Participate करो क्या भी है. Regular, irregular. So all for regular, कोई irregular वाला है, एक बंदा regular वाला है. और 2, 3, 4, 5 ये तो बहुत हो गया. 5 ठीक है. Because we see only 10 seconds, respiratory variation नहीं आती. If we see longer strips on a monitor, तो आपके panel move करेगा. 50 होगा heart beat, कभी 45 हो जाएगा, कभी 55 हो जाएगा. They keep on moving with respiration. So technically it's a irregular pattern. And this is the example of sinus arrhythmia. If you look over here, a sinus arrhythmia क्या होता है? When that variation जो है normally less than 10% होनी चाहिए RR की. अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए तो sinus arrhythmia, and you will see very commonly in ERs in young women who come with anxiety, panic attack. Respiratory arrhythmia होगा. आपको इन्हें पता नहीं है, effect तो नहीं हो रही. So we get a lot of effect consults on this irregularity. So think of sinus arrhythmia. 10% variation. But sinus definition is met. P before each QRS, each QRS following a P wave, P upright in lead 2 and inverted in AVR. ये आपकी sinus की definition है. Okay, then we अब हमें rate पता चल गया, rhythm पता चल गया, कि sinus drive कर रहा है. अगर sinus drive नहीं करेगा तो QRS पहले आ जाएगा. Then QRS will be driving. So you need to ascertain that क्या क्या है. Then you come to the P wave. Remember P का जो पहला वाला हम है, ये right atrial activation होता है. दूसरा वाला हम जो है वो left atrial activation होता है. तो serial होता है ना, sinus right पे लगा हुआ है, right free wall में, और वो last point जो है free wall of the left atrium है. तो it takes time. अगर right atrium बड़ा हो जाए या उसमें hypertrophy हो जाए, तो वो LA की voltages के ऊपर चला जाएगा. जब जाएगा तो peak tall हो जाएगी. अगर right atrial enlargement होगी. अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होगी तो ओपन हो जाएगा और डिले हो जाएगा. सो मोर देन 120 मिलीसेकंड्स हो जाएगा. किस लीड में देखते हैं पी वेव अगर मैं आपसे कहूं, which are the two leads that you would put your money on? D2 and V1. Excellent. V1 ऊपर पड़ी हुई है, D2 is right in front of the vector. तो but some people will have a slightly रोटेटेड हार्ट या ऐसी सब चीज, तो उसमें अगर किसी V3, V4, V5 में आए, जहां अच्छी भी आएगी, ER में आपने रजिस्टर यानी कि मॉनिटर भी सेट करनी है ताकि आप देख सकें. आपने नजर आ रही है, आपने D2 लगाया, D2 लगाने का मकसद ये होता है, ये वो ऐसा नहीं गॉस्पेल के D2 लगा, D2 इसलिए लगाते हैं ताकि आपको पी का पता चले. सो पी में मॉर्फोलॉजी आपने देख लेनी है. मॉर्फोलॉजी इज अप, इट्स मोर लाइकली कमिंग फ्रॉम साइनस. इफ इट इज इन्वर्टेड दैट मींस इट्स कमिंग फ्रॉम नीचे से ऊपर जा रही है. एपीआर भी नीचे से ऊपर जा रही है. सो दिस विल बी एन एक्टोपिक रिदम. रेट तो एक टैक्टिकार्डिया हो सकता है. तो मॉर्फोलॉजी, नाउ द मोर यू सी द मोर यू विल रिकॉग्नाइज व्हाट अ नॉन साइनस रिदम विल बी. वी एग्जांपल ऑफ दैट. सो मॉर्फोलॉजी में D2 इज प्रॉपर पॉजिटिव, लेकिन V1 में पहला पॉजिटिव हम्प होता है और छोटा सेकंड हम्प होता है. अगर लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी है तो ये हम्प डीप हो जाएगा और वाइड हो जाएगा, और अगर एट्रियल एब्नॉर्मलिटी इधर है तो ये वाइड हो जाएगा, और अगर राइट एट्रियल है तो ये पीक हो जाएगा, और यहाँ बड़ा हो जाएगा, ये प्रैक्टिकली नॉन एक्जिस्टेंट हो जाएगा. प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू दीस वेव्स, एंड दिस इज द एग्जांपल आई शोड यू.
I'm not going to spend time on it because there is a lot of interesting ECG front, but this is how you will. So go home and practice looking at T waves. Even now the concept is कि अभी आपने देख ली, फिर आपने PR इंटरवल देख लिया, beginning of the P to the beginning of the QRS, PQ सेगमेंट होती है, तो P के एंड से लेके Q के beginning तक होती है, और पेरिकार्डाइटिस में ये डिप्रेस होता है 20 to 30%. Now, if you are write these thoughts down because 20% में होगा या 50% होगा, ज़्यादा में आपको नहीं मिलेगा. So look for PQ depression in pericarditis. उसमें ऐसी elevation होती है, वो बहुत ज़्यादा important. Okay, then you have the Q wave, which is the first negative reflection. I'm going to give that. Pathologic wave is one which is larger than 1/3 of the R wave and which is wider than one small square. अगर उससे छोटी होगी तो नॉर्मल है. लीड आर एंड डी वन में नॉर्मल क्यू वेव्स हो सकती हैं. आइसोलेटेड क्यू वेव, अभी हम मैं कॉल पे था तो एक पेशेंट आ गया जिसने लीड में क्यू वेव बनी थी, टेस्ट हो गया अपनी तो उसे रेजिडेंट अड़ गया, मैंने कहा नहीं तो टेस्ट की एलिवेशन है, मैंने कहा नहीं है, कैच करवाई नॉर्मल है. ठीक है, सो आइसोलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अच्छा, क्यूआरएस की देखते हैं, क्यूआरएस की विड्थ देखते हैं, लेस देन 120 मिलीसेकंड्स होनी चाहिए, 110 से नीचे होनी चाहिए. बच्चों में काफी नैरो होती है, यहां लोगों में 80 मिलीसेकंड से कम होनी चाहिए. सो लुक एट द समटाइम्स इस्कीमिया हो रहा होता है तो आपकी जो क्यूआरएस है वो वाइड हो सकता है. आप अभी तो अक्सर एसटीडी में बात करते हैं ना, क्रॉस इस्कीमिया अगर होगा across the LV तो QRS भी वाइड हो सकता है. Then you come to the J point. J point is just a reference point. I'll show you all of that. And then you come to the ST segment. ये ऊपर होगी नीचे होगी. It will tell us about ischemia or infarction. Then you have T wave and U wave, and this is the TP segment. From this T to the next P, and this is the isoelectric reference जो आप लोग ST segment depression और elevation में देते हैं. इसको आप आगे करेंगे. This is your reference point. अच्छा, beginning of the QRS to the peak of the T wave is the absolute refractory period of the ventricle. इसमें आप बम भी फाड़ देंगे हार्ट को कुछ नहीं. But after that, इसके बाद जब भी कोई स्पाइक होगा इसके ऊपर, तो it can start arrhythmias, short starts और कुछ होगा. U wave is very important in the sense that sometimes इतना थोड़ा बहुत इस्कीमिया हो रहा होता है कि सर व्यू में चेंजेस आते हैं और किसी भी चीज में चेंज नहीं आ रहा है. तो अगर बहुत टिपिकल हिस्ट्री मिल रही है हार्ट की और यू वेव कुछ नहीं मिल रहा, यू वेव का जरूर देखिए. ये टिप है ऑन दिस स्लाइड. ओके, इसमें क्या लग रहा है? व्हाट डू यू सी ओवर हियर? क्विक, जिसको आता है वो बोले ताकि हम स्टैग्नेंट ना हो, नहीं तो बोर हो जाएंगे. व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फाइंडिंग ओवर हियर? शॉर्ट पीआर. एक्सीलेंट, शॉर्ट पीआर. ये पी है और पी खत्म होते ही आर क्यूआरएस शुरू हो जाता है. सो देयर इज प्रैक्टिकली नो पीक्यू सेगमेंट. इसका मतलब है कि जो पीआर इंटरवल होता है इट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ द डिले इन द एबी नोड. दैट मींस कि एबी नोड बायपास हो रहा है. अगर एबी नोड होगा तो ये डिले होगा. द पीआर इंटरवल इज 120 मिलीसेकंड्स टू 100 मिलीसेकंड्स. अगर 110 मिलीसेकंड से कम हो जाता है इसका मतलब देयर इज अ बायपास ट्रैक. और इसके साथ आप देखेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये डेल्टा स्लर है. क्यूआरएस अगर इस पर नीचे सिस्टम के थ्रू जाता है तो क्यूआरएस का जो अपस्ट्रोक है वो नियरली 85 डिग्रीज पे होना चाहिए. ये लेटा हुआ है तो ये डेल्टा स्लर इसलिए क्योंकि ये मसल के थ्रू जा रहा है. एक्सेसरी पाथवे मसल में लगता है जाके, एंड मसल में जो एक्टिवेशन है थोड़ी सी स्लो होती है, तो आपको जितना स्लो होगी उतना डेल्टा स्लर आएगा. स्कार मायोकार्डियम है, बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसके बीच में क्यूआरएस वाइड हो जाता है. लेकिन इस किस्म का स्लर इसमें आता है क्योंकि ये उसमें हो रहा है. Okay, good. So this is WPW, when you have an accessory pathway. Please do not miss this whenever someone young comes to you with palpitations, because this can kill. There is a 1 in 1,000 per year chance of this person dying. You don't miss that. क्योंकि ऑटोप्सी जब वापस आएगा मरा होगा तो रेट्रोग्रेड में सबको नजर आ जाएगा, हाँ यार आपने मिस कर दिया, WPW था.
So PR interval is to be looked at. Now there is another lesser known entity which is called LGL syndrome or long Levine syndrome. जिसके बीच में PR इंटरवल छोटा होता है लेकिन डेल्टा स्लर नहीं होता। और उसकी रीजन इसलिए है कि वो जो एक्सेसरी पाथवे है वो जाके वापस ही कंडक्शन सिस्टम में लग जाता है, मसल में नहीं जाता। And both these conditions are when you call syndrome, they present with palpitations. और अगर नहीं है palpitation तो आप कह सकते हैं कि ये trait है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज important ये है because all normals are based on a bell-shaped curve. तो कुछ लोग होंगे जिनका PR इंटरवल 210 मिलीसेकंड नॉर्मल होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 110 मिलीसेकंड भी नॉर्मल होगा। So about 1 to 2% people will have short PR intervals. They will be young normal people. ठीक है, तो अगर palpitation की हिस्ट्री नहीं हो रही है और 110 के करीब आ रहा है तो just follow them. बट अगर palpitations के साथ आ रहा है तो आप उसको LGL फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, so Q wave is the first negative diffraction मैंने आपको बताया था और मैंने आपको बता दिया था कि उसको वाइड होना चाहिए और उसकी हाइट जो है 1/3 या 1/4 तक की वायरस होनी चाहिए। And generally important to know this thing, the first activation जो कि impulse sinus से AV node से इस प्रकृति से जब नीचे जाती है तो first part कौन सा एक्टिवेट होता है? Mid part of the septum from left to right. और हार्ट लेफ्ट टू राइट तो पढ़ा ही नहीं हुआ ना, पोस्टीरियर एंटीरियर है, लेफ्ट पोस्टीरियर है और राइट एंटीरियर है, सेप्टम ऐसे पढ़ा हुआ है, तो वो इंपल्स ऐसे आएगी और V1 में छोटा सा R वेव आएगी। ओके, सो दैट R वेव इज सेप्टल एक्टिवेशन और वो लेफ्ट साइडेड D25 D6 में तो छोटी सी Q वेव आएगी। These are normal, do not call an MI. अच्छा, now if you get a bundle branch block तो राइट में RSR प्राइम पैटर्न V1 में होगा और D वाइड S वेव V6 में होगी। ये क्लासिक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आपका ये सेप्टल R जो है ये जनरली लॉस्ट, you lose that, but it will be wide and V6 will be all positive. तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा। if you get a wide rhythm तो आपका डिफरेंशियल क्या है? बंडल ब्रांच ब्लॉक, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम, अगर हार्ट ब्लॉक हो जाता है और नीचे से निकल रहा है रिदम, स्लो होगा, वाइड होगा। पेस रिदम, अगर किसी को पेस मेकर पड़ा हुआ है तो स्पाइक समटाइम्स नजर नहीं आती है, बट यू नीड एनडब्ल्यूबीडब्ल्यू जो मैंने भी आपको दिखाया था। तो दिस इज अ डिफरेंशियल, इसको दिमाग में बिठा लें बिकॉज़ वाइड कॉम्प्लेक्स रिदम किल्स, सो यू शुड हैव दिस क्लीन। ये तो पांच है, पांच डिफरेंशियल याद होना चाहिए। Okay, similarly now we have finished, we have gone through the QRS. End of the QRS, when it meets the ST segment, there is, अगर इस किस्म का dome like appearance है, इसको J wave कहा जाता है। Generally young लोगों में slower heart rates के ऊपर J wave आ सकती है, but it can also come in a pathologic condition। किसी को पता है? So epsilon wave, epsilon नहीं, but epsilon इसके करीब ही बाकी है, लेकिन epsilon is not a J wave। Hypothermia, ठीक है, तो hypothermia we don't have to be jack था ना, Titanic, yeah, so ICU, even CCU, even ER, rectal temperature में अगर 35 हो गया हुआ है J wave, and if you do an ECG and you have J wave in someone who has just arrived with infection, so you can preempt he is going to go into septic shock। तो ECG में आप J wave से पिक कर सकते हैं, Osborn waves they are called। अच्छा, फिर अर्ली रिपोलराइजेशन पूरा पैटर्न है, अभी मैं आपको उसका आगे उसकी ECG में दिखाऊंगा, बट ये जो J wave विद कॉन्केव ST सेगमेंट देखो ये एलिवेटेड है, अगर आप TP से कंपेयर करो तो देयर इज अ स्लाइट एलिवेशन, दिस इज नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल लोगों में हो सकती है, यंग लोगों में हो सकती है। तो अगर कोई सिम्टम नहीं है, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए करवाई है या ऐसी कराई है, वो चोट लग के आया था आपने करा ली, और ये है अर्ली रिपोलराइजेशन। Now T waves are asymmetric, ये याद करने की जरूरत है, asymmetric है, एक पहला लिम्ब बड़ा होगा दूसरा लिम्ब छोटा होगा, चाहे वो upright हो या inverted। Okay, if it becomes symmetric that means there is a pathology, it's a serious observation। तो इसमें T wave inversion जो है मैंने आपको बताया था, लीड जहां Q हो सकती है वहां लीड 3 में, AVR में और B1 में
T wave invert हो सकती है to be shallow, less than 2.5 millimeters and asymmetric. And in women sometimes ये मैंने जो yellow वाले stars लगाए up to B3 हो सकती है. These are non-specific changes. अगर मैं आप सबको ECG के leads लगाऊं and hyperventilate कराऊं, breathe कराऊं, तो T waves invert हो जाएंगी. खाना खाने के बाद अगर आप अपनी ECGs कराएंगे तो उसमें भी विगोटोनिया होता है, उससे भी T waves invert हो सकती है. Fear itself can cause T wave inversion. So these are non-specific ST2 changes जो हम कहते हैं. Otherwise, we don't give any special rules. ठीक है. So मैंने आपको रिफ्रैक्टरी तो बता दिया था कि क्या होता है. दो continuous leads में T wave inverted हो, symmetric हो, deeper than 2.5 millimeters, they are significant. Now T waves can have secondary. अगर किसी को left bundle branch block है या paced rhythm है या WPW है, तो चूंकि डीपोलराइजेशन मसल से हो रही है, रीपोलराइजेशन भी अब नॉर्मल होगी. तो अगर QRS पॉजिटिव है, T वेव इन्वर्टेड होगी उस स्टेट में. जिसमें QRS नेगेटिव है, उसमें T वेव अपराइट होगी. ये रूल है. दे हैव टू बी डिसकॉर्डेंट, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. ठीक है. अगर किसी को लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और चेस्ट पेन हो रहा है और T वेव्स कॉनकॉर्डेंट हो जाए, यानी कि अगर QRS ऊपर है पर T भी सीधी हो जाए, तो it's significant of transmural ischemia, should not be missed. Tall T's are very important. Why? Because अगर मैं आप सबकी let's say left anterior descending artery में balloon डाल के खोल दूं, तो सबसे पहली चेंज क्या आएगी? Hyperacute tall T वेव आएंगी. ये 1918 में डॉग मॉन्टर ने एक्सपेरिमेंट किए थे. तो फर्स्ट पिकअप वाज tall T. Now the अच्छा tall T's जो है तीन किस्म की होंगी, and you will be bitten by tall T's every 6-7 months if you are working in a high dependency area. और उसमें क्या है? पहली वाली जो है hyperkalemia है, is pinched on top and narrow base. हिस्ट्री होगी hyperkalemia की, आएगा आपके पास. तो अगर इस किस्म की tall T's नजर आ जाए hyperkalemia का सोचिए. ये wide based है and tall symmetric है, दोनों symmetric है, दोनों के जो limbs हैं वो बराबर हैं. जो लास्ट वाला है ये भी tall है, लेकिन इसमें जो पहला limb है वो लंबा है, दूसरा limb छोटा है. ये asymmetric है. Normal young men जो thin asthenic होते हैं वो 90% will carry something like this. मैंने एक दफा साइकियाट्री में ECG के लिए मुझे कंसल्ट मिली थी. I was a resident at that time and I presented that ECG to the grand round. Everybody jumped. उस जमाने स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता था. स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया, मैंने कहा चेस्ट पेन ही नहीं होता, तो नॉर्मल वेरिएंट. A lot of streptokinases were given in the past to these young men जिनको एटिपिकल चेस्ट पेन हो रहा था मस्कुलर, और वो इसके साथ आते थे, वो लग जाती. ये वाली चेंज जो है ये आपने मिस नहीं करनी, because this is the earliest possible you're going to get typical chest pain and hyperkalemia मिस नहीं करना. ये बात समझ आ गई? टॉल T's के. अच्छा दूसरी बात, सॉरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है जो येलो डब्बे में थी कि नॉर्मल T वेव्स आर 1/8 ऑफ द R वेव. इधर देखो, इसमें जो कि इस्कीमिया हो रहा है, जब भी इस्कीमिया होता है QRS लूजेस वोल्टेज. अगर QRS वोल्टेज, ये आपकी थर्ड आई वेव्स, जैसे मैं कहता हूं कि जब आप ECG देख रहे होते हैं ना, आपको अनकंफर्टेबल हो जाएंगे आप. अगर आपने बहुत सारी ECG देखी हुई है तो जो ही आप देखेंगे QRS एम्पलीट्यूड लो हो रहा है and किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो you would start thinking this is serious versus some. ठीक है. ये जो नॉर्मल वाला वेरिएंट है इसमें देखो QRS T tall है, लेकिन QRS is also big. तो normal T's are 1/8 of the R wave, less than 2/3 of the R wave, or less than 10 millimeters. अगर absolutely 10 millimeters से ऊपर है तो abnormal है, tall. अच्छा U waves का जो है हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि U waves जो हैं वो इस Purkinje system level ischemia denote करते हैं. They should be 1/3 of the T wave. They move with the T wave, and they should be in the same. The vector should be in the same direction. अगर T सीधी है तो U भी सीधी होगी. अगर T सीधी है और U उल्टी हो गई है और किसी को typical chest pain हो रहा है, तो ischemia. Maybe no other change. ठीक है, ये बात क्लियर हुई है. So U waves सिर्फ इतना भी आप याद रखें. I'll show you the patterns of U waves that you get. So ये आपकी U wave है.
ये आपकी यू वेव है और इधर भी आपकी यू वेव। अच्छा, यूज आर बेस्ट सीन इन द चेस्ट रीज V1 to V3 एंड ये आपकी यू वेव जो है ये T के एंड पे है और ये उल्टी हो गई है और इसमें ST सेगमेंट अप हुआ है। These are ischemic यू वेव्स, उल्टी हुई है। लास्ट वाला है ना, कैन यू अप्रिशिएट दिस? यहाँ आ रहा है ये जो नीचे नेगेटिव ब्लिप है ना, दिस इज यू वेव। हाउ विल यू डिफरेंशिएट अगर इधर P आ जाए, लेट्स से टैकीकार्डिया हुआ, P और T मिले हुए हैं, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि ये U नहीं है? Wait for the rhythm to become abnormal or do a carotid sinus massage. Slow down the heart. The heart slow होगा, P अलग हो जाएगी, T साथ मूव करेगी, U T के साथ मूव करेगी। सर इसमें T का appreciate कर पा रहे। So कौन सी वाली? इसमें so basically ST elevate हुई है और T ऊपर है। पहले tall T होती है, उसके बाद ST से आपको अभी मैं आपको उसका दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने इसको बड़ा करके दिखा दिया, यू वेव इन्वर्जन ऑन अ अपराइट T। अगर इसमें चेस्ट पेन होगा, इट इज सिग्निफिकेंट ऑफ इस्कीमिया। ये अगेन आपकी जब T और U वेव मर्ज कर जाते हैं, you can get large T waves, but when you are measuring QT interval, please do not measure the U। आपने U मेजर कर लिया, 40 मिलीसेकंड उसमें ऐड हो गए, अब आपको वक्त पड़ गया, बॉर्डर लाइन 450 था, अब हो गया 490। You feel very uncomfortable, so I'll show you that as well। So U wave inversion myocardial infarction ischemia, अगर PVC आ रही है उसके बाद भी U invert हो सकती है, अगर coronary artery disease है, it's an abnormal response always। LVH में हो सकती है, long QT syndromes में U forms the part of the three wave। Okay, QT interval का measure करने का तरीका जो है, जो which excludes the U is a tangent method। चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो, आपने जो distal limb of the T wave है उसके ऊपर एक tangent बनाना है, जहां वो TP segment को cross कर रहा है, that is where you measure the QT interval। अगर मैं इसको जहां ये U wave के साथ खत्म हो रही है ये करता, तो ये 40 मिलीसेकंड और ऐड हो जाता। Get my point? So QT intervals, anyone who comes in with syncope, the first interval on the ECG that you're going to measure is the QT interval, otherwise आप कभी नहीं करेंगे और मिस लॉन्ग QT सिंड्रोम्स मिस हो जाते हैं। एंड ये आप अगर U में आप लेंगे तो क्या फंस जाएंगे, तो आपने U को एक्सक्लूड करना है। QT इंटरवल जो है इज डायनामिक, इट चेंजेस विद एवरी RR इंटरवल। तो अगर बहुत इररेगुलर बीट है तो आप 6 की QT इंटरवल निकालें और उसको एवरेज आउट करें, एवरेज में। ठीक है, मुश्किल लगता है लेकिन इट विल गिव यू टैक्टिकल इंफॉर्मेशन। जिस अगर मैं आपको गलत, आप फौजी हैं फॉर एग्जांपल, मैं गोलाबारी करनी है और मैं आपको 10 डिग्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन दे दूं तो आप पता नहीं क्या उड़ा देंगे, तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसी है। सो यू नीड टू बी वेरी क्रिस्प इन योर मेजरमेंट और अपने वो डाउनलोड कर ले मेडिकल कैलकुलेटर्स, उसके ऊपर हॉजेस का फार्मूला यूज किया करें QT करेक्शन के लिए रेट, बिकॉज़ जो रिजल्ट्स है वो जब एक्सट्रीम रेट्स होते हैं उसके ऊपर गलत बता देते हैं। Hodges is very good. That's what I use। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि बी वेयर ऑफ गलत व्हाट यू कैन डू, फिजियोलॉजिक रॉन्ग जो आप कर सकते हैं, जिनमें एक रॉन्ग है कि आपने लीड गलत डाल दी। जल्दी में क्या होता है, कॉमन राइट की लेफ्ट पे और लेफ्ट की राइट, और आपने ECG निकाल ली और वो आपने फाइल में लगा दी। अब मैं आऊंगा, मैं कहूंगा यार इसको तो हाई लैटरल इंफार्क्शन हो रहा है यहाँ, विदाउट लुकिंग एट द पी वेव, बिकॉज़ आई अस्यूम कि आपने शायद ECG सही ली है। और AVR जो कि नेगेटिव होनी चाहिए, which is a cavity T या पॉजिटिव है। अब इसको मैं देखूंगा, मैं कहूंगा उप्स ये तो गड़बड़ है, फिर मैं P को देखूंगा, P अगर 1 की नेगेटिव है, 1 का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां होता है, अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब इंपल्स यहां से इधर जा रही है, साइनस तो इधर लगा होता है, इधर से ऐसे कैसे होगी? सो two differentials only, one is limb lead reversal and dextrocardia। limb lead reversal में आपकी जो V1 to V6 प्रोग्रेशन है, मैंने आपको बताया था वो एक सेप्टल R होती है ना छोटी सी, as you go along from V1 to V6 this grows and the transition zone is either in the V3 or V4। ट्रांजिशन का मतलब है R wave equals S wave, बड़ा ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, R wave आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन ऑफ R wave। तो वो नॉर्मल हो गई, तो हार्ट आपका सही जगह पे पड़ा हुआ है, तो दिस इज
लिम्ब लीड रिवर्सल। अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा तो चूंकि हार्ट इधर पड़ा हुआ है एपेक्स और V6 इधर है, तो V6 will become negative and amplitude will become छोटा, and यहाँ बजाय R wave progression के R wave regression होगी, and this is the over here R wave बड़ी है तो छोटी हुई और V6 is negative and छोटा, whereas V6 is positive and बड़ा। so यहाँ लिम्ब लीड रिवर्सल, टेक्निकली वो भी लिम्ब लीड ही रिवर्सल हुआ ना कि आपका हार्ट अंदर से चेंज हो गया, दूसरे में नॉर्मल हार्ट था, आपने लीड्स चेंज कर दी, तो लिम्ब लीड्स एक जैसी होंगी, लेकिन चेस्ट लीड्स लिम्ब लीड रिवर्सल में नॉर्मल होंगी प्रोग्रेशन और डेक्स्ट्रोकार्डिया में रिग्रेशन होगी। मुझे टाइम ना बता दे रहा मिनट, लिम्ब लीड रिवर्सल है ये और ये डेक्स्ट्रोकार्डिया। Will you be able to make it next time? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं दोबारा बताऊं। ठीक है, that's why कि आपकी लीड्स नॉर्मल ऐसे लगी होती हैं और आपका एपेक्स इधर पड़ा हुआ है, तो you will get this negative reflection। प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर यही है कि वेक्टर अगर दूर जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा, बिलो द आइसोलेटेड पॉइंट होगा, और अगर फोकस जो है सोर्स दूर पड़ी हुई है तो आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो भी छोटी होगी। ओके, कैब्रेरा सर्कल याद होना चाहिए, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। उसके बीच में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ AVR इज एट -30, पॉजिटिव ऑफ 1 इज एट 0। अच्छा, AVR इज द ओनली लीड जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो -150 पे पड़ा हुआ है और +30 के ऊपर नेगेटिव, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव दीस। तो इसमें आप एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सिस सिंपल तरीका क्या है, डेल डुगन अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो वो कहता है 1 और AVF को देखें, बट आई थिंक 1 and 2 ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए कि वो दोनों इकट्ठी पड़ी हुई है, तो इट्स अ नैरोअर विंडो। अगर 1 और 2 दोनों पॉजिटिव होंगी तो एक्सिस शिफ्ट होने के चांसेस नहीं। डेल डुगन की वाइट विंडो में कभी-कभार गलत एक्सिस आ जाता है, तो नॉर्मल एक्सिस होगा अगर तो 1 और 2 दोनों पॉजिटिव होंगे आर वेव्स। अगर राइट एक्सिस डिविएशन होगी तो 1 नेगेटिव होगी, इधर जा रहा होगा वेक्टर, और 2 इधर है तो बाइसेक्ट करेंगे तो राइट एक्सिस डिविएशन होगा। इसी तरह से अगर लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगी तो 1 पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा, एंड अगर दोनों 1 और 2 नेगेटिव होंगे तो एक्सट्रीम राइट एक्सिस होगी। एंड ये जनरली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जाती है, क्योंकि नॉर्मल सुप्रावेंट्रिकुलर इंपल्स ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे नीचे आएगी, बट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में या कोई भी रिदम व्हिच इज ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एपेक्स एंड गोइंग अप, ये वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन है QRS, तो वो एपेक्स से ऊपर आएगी तो वो इस तरह से नोट होगी। Okay, now if I were to ask you, and in this day and age जहाँ EP is a very developed science, exact axis beat sometimes calculate करना पड़ जाता है, क्योंकि जिसको ischemic ventricular tachycardia होता है after an MI, sometimes multiple scars होते हैं, multiple sites होते हैं, तो उसके बीच में आपको एक्सिस से पता चलेगा कि ये VT1 है, ये VT2 है, ये VT3। स्पेशली लैब में अगर आप रेट कर रहे हो तो ये चीज becomes very very important। लेकिन इवन इन योर यूनिट्स अगर एक बंदा है जिसको मोनोमॉर्फिक VT हो रहा है लेकिन डिफरेंट टाइप्स का हो रहा है, तो दिस इंफॉर्मेशन विल मीन अ लॉट। तो कैसे होगा? सो आई विल टेक लीड 1 एंड लीड 2, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। अब आपने क्या करना है, एग्जैक्ट एक्सेस कैलकुलेशन के लिए यू काउंट दी वेव्स। तो ये यहाँ मैंने आर वेव काउंट किया, वो 8 है, और लीड 2 में थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में से माइनस किया जाए। तो यहाँ मैंने लीड 2 का आर वेव इक्वल्स 3 मिलीमीटर, एस वेव 9, तो जो रेजिडुअल वेक्टर है इज -6, क्योंकि नीचे है ना। और मैंने जब प्लॉट करना है इसको ऑन दिस, तो मैंने आपके लिए प्लॉट किया है, क्योंकि लीड 2 नेगेटिव था तो मैंने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में किया है, और लीड 1 जो पॉजिटिव था इस डायरेक्शन में किया है। ये 6 है और ये 9 है, और इसके ऊपर मैं आई विल बिल्ड वर्टिकल्स परपेंडिकुलर्स टू द लीड। जहां क्रॉस करेंगे दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो एग्जैक्ट आपको बता देगा कि कहां से आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। दूसरी मेथड जो मैं बहुत यूजुअली यूज करता हूं उसमें ये कि जो भी QRS लिम्ब लीड्स में सबसे बड़ा है वेक्टर उसकी तरफ होगा।
and then try to see कि उसका जो 90 डिग्रीज वाली लीड है वो क्या कर रही है. So 2 जो है AVL के साथ जाती है, 1 AVF के साथ जाती है और 3 AVR के साथ जाती है. ये 90 डिग्रीज तो क्रॉस एंड क्रॉस द क्रॉस. ये बात समझ आई है? इसको प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, बेसिकली पता चलेगा. ठीक है. एक्सेस शिफ्ट, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो है एक्सेस शिफ्ट कर रही है? शो ऑफ हैंड्स. कोई भी नहीं. नहीं तो बात सुनो, तुम लोग हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? अभी तो पीटीआई हो जाना है यार. तो बोर्ड छोड़ दो. ठीक है. तो और लेट्स से left bundle branch block. How many of you feel that left bundle branch block causes an axis shift? Left axis. ठीक है. So remember, neither left ventricular hypertrophy nor left bundle branch block cause axis shift. Axis shift सिर्फ तब होता है जब लेफ्ट बंडल की जो दो ब्रांचेस हैं, एंटीरियर फैसिकल और पोस्टीरियर फैसिकल, उनमें से एक ब्लॉक होता है. और एंटीरियर फैसिकल बेचारा ऑर्फन है, उसकी एक ब्लड सप्लाई और बड़ा थिन है, तो वो आसानी से फाइब्रोज हो जाता है, आसानी से मर जाता है, इस्कीमिया में आ जाता है, हाइपरट्रोफी में भी आ जाता है. बट इट इज नॉट द हाइपरट्रोफी दैट कॉजिंग द शिफ्ट, इट इज द एंटीरियर फैसिकल दैट इज डाइंग, दैट इज कॉजिंग द शिफ्ट. याद रखना. इसी तरह से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्लासिकली ऊपर से होता है हमेशा, जहां से मेन ट्रंक होता है. नीचे स्पेयर हो जाती हैं चीजें अनलेस लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज बीइंग कॉज्ड बाय कार्डियोमायोपैथी. उसके बीच में एंटीरियर फैसिकल जाएगा. पोस्टीरियर हैज टू ब्लड सप्लाईज, इज थिक, सो इट डजंट डाई इजी. तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट बंडल होगा और लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा. इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की जो मोर्टेलिटी है इज नॉट नॉर्मल. राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आप लोगों में से शायद किसी को हो भी, इट डज नॉट चेंज योर longevity. If you get a left bundle branch block, your lifespan will be constricted. थोड़ा सा होगा लेकिन होगा. If you get a left axis deviation with left bundle branch block, it's called a complicated left bundle branch block, and it's उसकी significant mortality morbidity हो जाती है depending on other things as well. So left bundle, left axis, take them serious. और ये आपको होगा, you may be the first person in the ER to see this observation. आपने disregard कर दी, किसी ने भी नहीं देखा, और अगर आपने हाईलाइट कर दी, I think a lot of benefit will come through. हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का एसिमेट्रिक है. लेफ्ट फ्री वॉल मोटी हुई और सेप्टम पतला सा है, बहुत रेयर है. तो वो जो चार्ज ज्यादा हो जाएगा उस साइड पे, तो रेसिडुअल वेक्टर को सब खींच लेगी. But that's rare, and you must base your knowledge on common things common. Bell shaped के बीच में 90% जो है आपका इधर लंप हुआ होगा. So don't go off. वो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो फुट नोट्स पढ़ते हैं. फुट नोट्स में मेडिसिन नहीं है. मेडिसिन इज इन द चंक ऑफ द नॉलेज. इस तरह से अगर पार्शियल होगा, then have a axis shift अगर आपने बहुत ज्यादा एरिया डैमेज कर दिया, पर उसमें एम्पलीट्यूड भी छोटे होते हैं. सो अप्रोच द ECG एज अ प्रॉब्लम. अगर जमीन पे पड़ी हुई ECG, उसको पढ़ के उसके ऊपर मीनिंगफुल डिसीजन मत लें. Always read the ECG in the clinical context of the patient. तो जैसे मैंने आपको बताया, ECG वाला young 24 year को स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाने लगते हैं. There is a UR still working in AKU जिसको हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाया था. वो पहाड़ों से आया था ऊपर, तो उसको कौन किएगा, J wave early repolarization change थी, उसको बेचारे को कुछ बदहजमी हो गई थी या क्या हुआ था, उसको पेन हो गई थी, तो उसको लटा के स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाना रिस्क है. And once you do streptokinase, you can't repeat it. And if you repeat it, it should be done after 6 months to 1 year. पुराने वक्तों में अभी भी शायद आप में से कोई ऐसी जगह सर्च करें जहाँ शायद समटाइम्स आपको streptokinase लगानी पड़े. And उसमें फिर ये है कि then you double the dose. Okay, so now, and this is very important. Whoever saves one life, has saved all humankind or humanity. That's what you do every day. So never miss a lethal sign. The sign. So the PQRST approach, जो है, it's a very simple approach. You know now what PQRST stands for. I'm going to give you indications that can kill you on and around this PQRST. तो इसकी तस्वीर बेशक ले लीजिए. ठीक है. पहला ये है sinus arrest. Sinus arrest can kill you. Sinus arrest में P wave नहीं होगी. Now I will give each example of this. उसके बाद atrial fibrillation can cause a stroke, can kill you, and should not be missed
तो अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, आपने एंटीकोएगुलेट नहीं किया, यू एंड अप लीगल सूट होगा आपके खिलाफ। Then PR interval AV blocks, अगर PR interval बढ़ के ब्लॉक हो रहा है तो वेंट्री बाक हो सकता है, अगर PR interval कांस्टेंट है, QRS ड्रॉप हो रहा है तो Moffitt's type 2 हो सकता है. So you look at the PR interval for AV blocks. Then WBW, मैंने आपको बताया इसका भी, you can ablate it and you can save this person from sudden death. And then of course pericarditis में PQ segment depression होगा, ST segment elevation होगा. इसकी मैं एग्जांपल भी दूंगा. Then bundle branch block and vesicular blocks. Bundle branch block आप कहेंगे क्या will it kill? Yes, it can kill if it's an extensive infectious disease. You can go into a block. Then ventricular tachycardia हो सकता है, QRS के through wide complex tachycardia. We will talk about a few conditions. In one is Brugada syndrome. Anyone knows कि Brugada syndrome क्या होता है? और ये जानना जरूरी है. Brugada ने स्पेन में चार्ल्स Brugada brothers ने डिस्क्राइब किया था इसको. Surprisingly, Brugada syndrome is more common in our areas. And I was once attending an ECG और एक जो पढ़ा रहा था वो इंसान को देखा. Tom Peters नाम है उनका, सीनियर साइंस से आए हुए थे, and he asked me to get up and interpret an ECG. तो मैं उस जमाने में फेलो था, मैं खड़ा हो गया. अच्छा मैंने पिक तो कर लिया कि ये ब्रुगाडा सिंड्रोम है, तो मैंने उससे कहा ब्रुगाडा सिंड्रोम क्या है, यू रॉन्ग. मैं परेशान, मैंने कहा ये हिस्ट्री भी टिपिकल है, यंग लड़की है और सिंपथी हुई है एंड ही इज नॉट एग्रीइंग टू इट. मैंने कहा इट लुक्स लाइक ब्रुगाडा सिंड्रोम. कहते लुक एट द डेट, द डेट वाज 1986. तो ब्रुगाडा जो है उन्होंने 1992 या 94 में डिस्क्राइब किया था. तो कहता है कि किसी मेरे पास आई, मैंने सारी दुनिया के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को भेजा, सबने वापस लिख के भेजा एटिपिकल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. हाउएवर द एस्ट्यूट ब्रुगाडा ब्रदर्स जिन्होंने उसके बाद बहुत सी चीजें डिस्कवर की हैं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने लंप किए केसेस टुगेदर, दे सेड कि तो सडन डेथ करते हैं एंड ब्रुगाडा, अब एवरीबॉडी पिक्स अप ब्रुगाडा सिंड्रोम. तो ब्रुगाडा सिंड्रोम के साथ आएगा. आपके ईआर से उठा के मैंने लोगों को आईसीडीज डाले हुए हैं जिनको सक्सेसफुल शॉक्स भी पड़े. सो प्लीज डू नॉट मिस, दे विल कम विद अ एटिपिकल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. सब भी दिखाने में ERS is early repolarization syndrome. Now knowledge बढ़ती है, मैं आपको पढ़ा रहा था कि early repolarization normal होता है, लेकिन जब से ICD लोगों में डाली गई तो जब रिदम देखा गया तो ये देखा गया कि एक small सब ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको early repolarization की चेंज आती है, they can die suddenly. तो उसको अब now we reclassify it as a malignant early repolarization syndrome and a benign early repolarization syndrome. So the family history of sudden death, if someone comes like that, they can see this. और उसके बाद कुछ पैटर्न्स होते हैं, you don't need to go there, but early repolarization syndrome का आपको पता होना चाहिए. Hypothermia, J-wave, Jack died finally, मतलब मर गया बेचारा. फिर ARDC is arrhythmogenic right ventricular dysplasia. It's again common in our areas, यहाँ पाकिस्तान में. इसमें क्या होता है, फाइब्रोफैटी चेंज आ जाती है और someone said mentioned an epsilon wave. इसमें 20 to 50% लोगों में epsilon wave आती है जो कि लेट रिपोलराइजेशन वेव होती है और ST सेगमेंट के ऊपर एक छोटा सा ब्लिप आता है P wave का. Someone comes in with syncope and you see that blip get not. देखो आप लोग जब echo के लिए भेजते हैं ना हमारे पास, तो हम run of the mill echo करते हैं. RV is an orphan, it is most neglected chamber. RA उससे भी ज़्यादा neglected है. So specifically say I am thinking of arrhythmogenic right ventricular dysplasia, please look at the RV. फिर सारी वो मेजरमेंट्स होंगी, RV को देखा जाए. तो अगर ECG में वो वाली चीज है, syncope should trigger. So generally syncope होती है तो हमें पढ़ाया जाता है कि LV अगर डाउन है तो mortality बढ़ेगी. There are 4 conditions जिनमें normal LV के साथ you can die. One is WBW, the other is long QT, Brugada and arrhythmogenic right ventricular dysplasia. अच्छा लॉन्ग QT के साथ शॉर्ट QT भी आता है, याद रखना. QT अगर 450 से विमेन में बड़ा हो जाए और 300 से कम हो जाए तो इट बोथ कैन किल इक्वली, both can cause polymorphic VT. Okay, then ST ablation, non-ST ablation, MI, hyperkalemia, and then of course ischemia, and then long QT, short QT syndrome. That's it. ठीक है, तो मैं इसको एक बार पीछे कर देता हूँ. Take a picture of this, and ये आपके डिफरेंशियल में होना चाहिए हमेशा.
because these are all the lethal conditions that you can see, जो शायद आपको दोबारा चांस ना दे। इनको आप हल्का हल्का किसी छोटी बुक से पढ़ सकते हैं, just pick up the diagnostic points। ECG अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। So problem based ECG on this, so this is an 81-year-old man comes in with syncope, short duration है for about 3 minutes और कोई signs नहीं है इसके साथ, and this is the ECG। अब quickly करना है, साथ साथ जल्दी बताओगे तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। What do you think? अच्छा, there is a every condition should have an algorithm जो आप फॉलो करना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी कॉमन, मुझे I want, my wife is not a doctor but she's a better diagnostician than I am because she uses common sense, blatant common sense use करती है। और मैं मैकलाउड को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेट्स को खुश करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, अपनी समझ नहीं आ रही थी and I'm lost in translation। तो common sense, अगर इस ECG को ले बंदे की तरह पढ़ोगे तो क्या कहोगे? हाँ? There is a pause, किसने कहा है? Excellent, so that is the observation, there's a pause। ये PQRS चलते pause। अच्छा, अब जब pause आ गया है, there is a method you'll look for the P wave। Can you see P wave? Yes। Any P wave? No, P wave ऐसी आएगी, robust P wave आएगी, twins आएंगे, एक से बिल्कुल और अपने टाइम पे आएगी। अगर ये आपका ऑटोमेटिक इंटरवल है ये, तो यहाँ आनी चाहिए थी, फिर यहाँ आनी चाहिए थी, फिर इधर आनी चाहिए, नहीं आई, फ्लैट लाइन आ गई। So there is no P wave। अगर P wave नहीं है, it's a sinus pause। अगर P wave है, on time है, तो AV block है। और अगर P wave आई है, वक्त से पहले है, तो it's a premature atrial beat which has blocked in the AV node because of its prematurity। ये तीन चीजें हैं जो आपने देखनी है। So you will look for a P wave, if you don't see a P wave, sinus pause। If you see a P wave on time, it's an AV block। If you see a P wave which is before time, it's a PAC, premature atrial complex, which has blocked। सबसे कॉमन कॉज पॉज का is a non-conducted PAC। जब हम होल्टर्स करते हैं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये आ रही होती है। Clear? So whenever you see a pause, just follow these 3 questions, and so this is sinus rhythm and sudden sinus pause, and then sinus resumes। This can be a sign in an 81-year-old with syncope। This is an indication for pacemaker, unless he's on beta blockers, unless he's hypothyroid, or reversible causes आप जो है निकाल लो। वो भी वैसे आता है, उसका एक एको आपने कराना है, ECG कराना तो आपको रीड भी कराएंगे, और थायराइड आपने देखना है। So how will you differentiate this with the sinus arrest? देखो, साइनस अरेस्ट और साइनोइडल एक्सेट ब्लॉक और साइनस पॉज की ही कंडीशन है। मैं यहाँ अगर अभी साइनस एक्सेट ब्लॉक और उसमें चला जाऊँ, इट रियली डजंट मैटर, जस्ट से पॉज एंड कार्डियोलॉजिस्ट को बुला लो, उसका दिमाग खराब होने दो, खुद बैठ के उसको मेजर करोगे, वो कर लोगे। लेकिन ईआर में आई डोंट थिंक कि आपके इतना टाइम होता है, पीछे से धक्के पड़ रहे होते हैं। यू मस्ट गेट द क्रिटिकल थिंग आउट। अच्छा, तो ये है हाउ टू असेस अ पॉज, मैंने भी आपको बताया। ये एग्जांपल देख लें, this P comes before time, so this is the PAC that has blocked because of its prematurity। नीचे जो है आपकी PQRS, and then P comes on time and blocks, this is an AV block। ठीक है, समझ आया? ओके। फिर PAC की कोई सिग्निफिकेंस है? PAC की सिग्निफिकेंस ये जरूर होती है कि अगर 81-year-old में किस्म की आ रही है तो उसको AFib में डाल सकते हैं। Any premature beat which comes early can start atrial fibrillation if there is an underlying substrate। For example, किसी को mitral regurgitation की LA size बढ़ा तो AFib में आराम से चला जाएगा। सर प्री टाइम से पहले आएगा तो PAC है। हाँ, टाइम पे आएगा तो AV ब्लॉक है, मतलब कि AV ब्लॉक तो PAC के साथ भी है, लेकिन वो साइनस रिदम AV ब्लॉक है। तो वो डिपेंडिंग ऑन के उससे पहले VR इंटरवल को क्या हो रहा है, वो वेंटिबाख मोबिट्स टाइप 1 ब्लॉक हो सकता है और मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक हो सकता है। I cannot teach you the entire ECG in 2 hours। I am giving you tips जो कि आप जब नेक्स्ट जब ECG के सामने खड़े होंगे आपके दिमाग में आएंगे, उसके लिए दिमाग को इजाजत दें। सेकंड है, अच्छा ये 22 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो सेकंड प्रॉब्लम है 67-year-old palpitation fainting episode, uncontrolled hypertension। इसके बारे में क्या ख्याल है? कॉमन सेंस। I want 50% of common sense, उसके बाद अपनी डॉक्टरी कर लेना।
इसमें क्या आ रहा है? पॉज, एक्सीलेंट, एंड ये वाला जो रिदम है, ये नॉर्मल लग रहा है, तेज है। सो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, फास्ट रिदम, ठीक है, रेगुलर है। हार्ट जब हार्ट वेंट्रिकल रेट बहुत तेज होना तो यू शुड पुट मी ऑन द स्पॉट। ऐसे कि मैं तो नहीं बता सकता कह सकती कि मुझे कैलिपर दें, आप बताएं है, because once the rate goes above 170 your eye loses the ability to discern। तो ये रेगुलरली इरेगुलर है, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन है और ये यहाँ ब्लॉक हो जाता है, ऑफसेट पॉज इसे कहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन बंद हुई। अच्छा, अब जब हार्ट को एट्रियल फिब्रिलेशन का रेट क्या होता है एट्रिया में जब होती है एट्रियल फिब्रिलेशन 400 to 600 बीट्स पर मिनट। एट्रिया तभी तो फिब्रिलेट करते हैं, तभी तो क्लॉट बनता है। तो अगर 600 बीट्स पर मिनट पे आप समझे कि उसको साइनस नोड को की पिटाई हो रही है, सडनली वो ऑफ हो जाती है, तो साइनस को बेचारे को उठने में भी टाइम लगेगा। और नॉर्मली साइनस शुड टेक 1.5 सेकंड्स टू वेक अप, बट ये लोग बीमार होते हैं 6 साइनस सिंड्रोम वाले, तो इसमें वो उठा ही नहीं, और 3 4 5 6 7 सेकंड्स के बाद जाके फिर दोबारा एट्रियल फिब्रिलेशन शुरू होगी। इसका मतलब इसका साइनस इज वेरी डिजीज्ड। इसको 6 साइनस सिंड्रोम या ब्रैडी टैकी सिंड्रोम कहते हैं कि स्लो फास्ट। एंड दिस मे बी इनकी जो फर्स्ट समटाइम्स प्रेजेंटेशन होती है वो स्ट्रोक होती है। तो अगर कोई स्ट्रोक का बंदा आ जाता है आपके पास, ईसीजी करके देखेंगे ब्रैडी टैकी तो नहीं हो रहा, उसमें मिस हो जाता है। कभी आपको नॉर्मल ईसीजी आ जाएगी और जब वो पॉजेस आप देखेंगे तो इमीडिएटली टेक अ रिदम स्टेप और अप्लाई अ होल्टर ताकि आप ये चीज मिस ना करें। तो दिस इज ब्रैडी टैकी सिंड्रोम, एंटीकोएगुलेंट, चाहे ये साइनस रिदम में भी आ जाए, दे नीड टू बी एंटीकोएगुलेंट। ओके, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन देन साइनस अरेस्ट। अब 74 year old with again syncope, mild left ventricular hypertrophy, moderate aortic stenosis with gross calcification। अब gross calcification जब aortic valve में आ जाती है तो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एनाटॉमिक, AV नोड के, AV नोड होता है, ठीक है, एन्युलस के साथ AV नोड पड़ा होता है। अब मैंने पेपर आउट तो नहीं किया, मे बी हु नोस। इसके बारे में क्या ख्याल है, ले इंप्रेशन क्या है? अच्छा, मुझे एक लोग बात बताओ कि आप लोग बोलने से क्यों रोजा लग रहा है, थक गए हो? व्हाई डोंट यू स्पीक? वी आर कॉलीग्स। मुझे आप लोगों को कुछ ये भी नहीं याद रहेगा किसने कौन सा सवाल नहीं जवाब दिया था। व्हाट डू यू से? सो पॉज आया ना, दोबारा पॉज आया। सो काफी सारी सोच आ रही है। एक आ रही है बंडल ब्रांच ब्लॉक की, क्योंकि ये वाइड रिदम है। सो आप कहेंगे देयर इज अ रेगुलर वाइड रिदम which comes and then there is a pause. The pause contains a P wave which comes on time, and before the drop the PR interval is the same as is after the block. So PR interval remains unchanged and a P drops a QRS and the QRS is wide. So Mobitz type 2 block जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक bundle block होता है और दूसरा intermittently block हो रहा होता है। एंड मोबिट्स टाइप 1 या वेन की बात ब्लॉक में क्या होता है, एवी नोड में डिजीज होती है, पीआर इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है टिल द एवी नोड थक के ब्लॉक होता है। सो पीआर इंटरवल विल इंक्रीज एंड देन क्यूआरएस विल ड्रॉप एंड पॉज आएगा। पॉज में एवी नोड रिकवर कर जाएगा, वो फिर छोटा हो जाएगा पीआर, फिर टाइपराइटर की तरह बड़ा होगा और क्यूआरएस आमतौर पे नैरो होता है अनलेस देयर इज अ बंडल ब्रांच ब्लॉक। If the PR is not moving, and my tip to you is always look at the PR interval after and compare it to the before. ये एक जैसे हैं, QRS wide है, infra is disease है, this is the most serious block that can happen, most serious, 3rd degree से ज्यादा है, 3rd degree में escape निकल आता है, तो बच के। इसमें अब नहीं पता। मेरे एक पेशेंट थे, मैंने उस जमाने में ऑफ साइड क्लिनिक शुरू की थी मरीज ने, वो आए, उनको ये था, मैंने कहा जी आपको पेसमेकर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने नहीं डलवाना। मैंने उन्हें बड़ा समझाया, बड़ा मरीज को बांध के तो नहीं डाल सकते, नहीं डालो, चले गए। महीने गुजर गए, मैंने कहा पता नहीं बिल्कुल सही होंगे या क्या होगा। तो एक दिन उनकी बेटी आई किसी और को दिखाने, मैंने पूछा अब्बा कैसे? अब्बा तो रात को निकल गए, यानी कि स्लेप्ट एंड नेवर वोक अप एंड शी वाज सो सैड। शी सेड कि हमें उस वक्त कर लेना चाहिए था। एंड इट्स नॉट दैट मैंने उनको स्ट्रेस नहीं किया, but sometimes people cannot understand, but you have to make them
अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस। अब स्लीप में जाएंगे, ठीक है? तो ये याद रखना है। सो पॉज, वही वाला पॉज प्रिंसिपल यूज करना है। QRS की विड्थ देखनी है, नैरो है, इट्स फॉरगिविंग, ऊपर से आ रहा है AB नोड। वाइड है, इंफ्रा इज ऑलवेज सीरियस, इट्स ऑल और नन। व्हेन की बात AB नोड है ना, उसमें आप बम्बार्ड करते रहे वो बेचारा थक हार के कुछ ना कुछ कर ही देगा। इट्स अ AB नोड इज मैं हमेशा कहता हूं गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि वो आपको हमेशा साथ रखता है। नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट आया बहुत हो जाते हैं, क्योंकि यस आपको टैकीकार्डिया होता, R-on-T फिनोमेनन का BF हो जाता। सो AB नोड है अलाउज यू टू बी हैप्पी, so it's God's gift to mankind, whereas infra is very very bad, वो either conducts or doesn't conduct। और इसमें क्या होता है, ये P आएगी, उसका P आएगी, P आती जाएगी, अब कुछ भी नहीं आएगा। मेरे कभी पेशेंट ने पेसमेकर डाला है, वो पिक ही नहीं हो रहे, तो उनकी बेटी ने एक दिन पूरी वीडियो बना के भेजी है फोन के ऊपर। वो बंदा बैठा हुआ है खाना खाने के लिए, जमीन पे बैठा हुआ है, वहीं उसको फिट्स पड़ते रहे, उसको कोई नीचे भी नहीं करा, वीडियो बना रहे सब। फिर आया, फिर मैंने उसको, मैंने कहा अब उसको एपिलेप्सी ट्रीट हो रही थी, फिर मैंने उसको एक होल्डर लगाया, उस होल्डर मॉनिटर के ऊपर वो पकड़ा गया, तो चलते इसी तरह से एकदम फ्लैट, तो पीज आती जाती थी और QRS नहीं आता। फिर उसको पेसमेकर डाला, तो ही इज नाउ डूइंग वेरी वेल। Okay, so ये P है, and this is the high grade block. This is the high grade block. This is not 33 block, इसमें vertical stand still है। ये P's आई जा रहे हैं और QRS जो है वो drop हो गया। So if two consecutive P's are dropped, it's called a high grade block. So no matter what condition is, high grade blocks are serious. इसका मतलब है कि इतनी disease हो गई है कि दो consecutive जो है P's drop हो रही हैं, तो you must call electrophysiology so that they can fix it. Okay, 23-year-old man palpitations, syncope into 3, and syncope is preceded by palpitations each time. History syncope की बहुत important होती है, अगर उससे पहले वो palpitations बता रहा है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हाँ जी, what do you think? Lay expression क्या है इसका? How will you define it? White complex, regular, irregular. अभी तक नहीं सीखा, मुझसे पूछोगे, हम बहुत तेज हैं, हमारी आंखें नहीं बता सकती रेगुलर है या इरेगुलर है, इम्तिहान के लिए ना। so it's a regular white complex rhythm। regular white complex rhythm की तीन डिफरेंशियल्स होते हैं। ventricular tachycardia, in your management it should be VT and VT। you should not वहां बैठ के फिलोसोफाइज नहीं करना शुरू करना। लेकिन अगर टाइम है, ब्लड प्रेशर है, पेशेंट शाश बशाश बैठ के बातें कर रहा है, तो ventricular tachycardia all SVTs with a pre-existing bundle branch block। और तीसरा होता है एंटीड्रोमिक AVRT, वो SVT जो कि WBW के साथ आता है, जिसके बीच में इंपल्स एक्सेसरी पाथवे से नीचे मसल में जाती है, QRS वाइड हो जाता है, एंड हिस पर्किंजी सिस्टम से ऊपर AV नोड से एट्रिया बैक। तो ये एंटीड्रोमिक AVRT। दूसरा क्या होता है, ऑर्थोड्रोमिक, नॉर्मल से नीचे आएगा, नॉर्मल से नीचे आएगा तो नैरो QRS बना है। एक्सीलेंट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए वाइड कॉम्प्लेक्स रिदम। ट्रीटमेंट के लिए VT के तौर पे आप ट्रीट करेंगे तो दैट्स फाइन, बट यंग है, 23-year-old है, खुद गाड़ी चला के आ गया है, सिंकोपी जरूर हुई है, सो थिंक ऑफ एंटीड्रोमिक AVRT। सो द मोमेंट द टैकीकार्डिया टर्मिनेट्स, टेक अ 12 lead ECG, उसमें आपने WBW रूल आउट करना है, उसमें आपने Q waves रूल आउट करनी है, बिकॉज दीज टू थिंग्स कैन एग्जिस्ट। स्कार यंग आदमी में भी हो सकता है। यंगेस्ट MI कितनी एज का देखा है आप लोगों ने? 27 और 30 और 27 से गोली लगाए 23 और उससे कोई कम, तो वो भी रीइंफार्क्ट के साथ है। तो पहले ही कब हुआ था? उसी 11 दिन अच्छा, 11 दिन पहले। सो मैंने केस रिपोर्ट किया हुआ 17-year-old नॉर्दर्न एरिया से, MI हुआ सेमी, और वो वहां से पहाड़ चढ़ के नीचे आया और AFIC में आया और वहां उसको पूरा वर्कअप हुआ। And another one who was again 17 years old, he died at the age of 27. He had familial hypercholesterolemia. उसका LDL 700 था। Okay, so this is antidromic AVRT। इस ECG को डिफरेंशिएट करना from ventricular tachycardia is rather difficult, क्योंकि इसमें एक्सेस भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखो 1 पॉजिटिव है, QRS नेगेटिव है, it's a white,
एंड एवी डिसोसिएशन और वो वाली चीजें जो हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी देखेंगे वो इसमें नहीं होती हैं। तो एक्सेप्ट योर वो लिमिटेशन, इसको मैं कार्डियोवर्ट करता हूँ अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, या मैं इसको दवाएं देके करता हूँ, उसके बाद आई विल सी ईसीजी में क्या है। एंड a lot of times आपको क्या टीपी लैब लेके जाना पड़ता है इनको डायग्नोस करने। और डिफरेंशियल याद रखना है कि इसका क्या है और उसको ट्रीट करना पड़ेगी। तो जब इसको कार्डियोवर्ट किया गया तो ये वाली ईसीजी आई, क्या निकला? Excellent. WW. Short PR, very short, non-existent PR interval and very delayed delta stir. 60% of accessory pathways come from the left side of the heart. इसमें ट्रांससेप्टर पंक्चर करना पड़ता है उसको अपडेट करने के लिए। अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है, ये मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था, मेरा जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का गुरु था, उसने कहा whenever you see WPW look at the AVR. अगर AVR में डेल्टा, which is the first negative deflection after the QRS, first 20 milliseconds, if that is negative, that means कि ये फ्री वॉल से प्री एक्साइट हो रहा है, यानी ये AV नोड से पहले एक्साइट होकर यहाँ से ऐसे ब्रेक कर रहा है। तो AVR यहाँ लगेगी ना, यहाँ से जब ऐसे ब्रेक करेगा तो QRS का पहला वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। So if AVR has a negative delta, it's a left pathway। और दूसरा लेफ्ट का एविडेंस ये होता है कि अगर एक्सेसिव पाथवे लेफ्ट साइड पे लगा Why? Because जहां भी लगेगा वहां से एक्टिवेशन सीरियली होगी फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, मसल के थ्रू सीरियली उसका। तो रिमेंबर दिस। तो यहां आप देखिए कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न आ रहा है, तो ये आपका लेफ्ट लैटरल एक्सेसरी पाथवे 60% होते हैं। तो अगर आप अपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को ये नोट लिख के भेजेंगे कि भाई प्लीज कम दिस लैटरल एक्सेसरी पाथवे, ग्रेट रिस्पेक्ट, तो कहेंगे यू नो योर ईसीजी। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मल पाथवे से इंपल्स नीचे जाती है, लेकिन सम पीपल विल हैव एन एक्सेसरी पाथवे। जब इंपल्स दोनों तरफ से नीचे ज्यादा तेज है, वो नैरो करेगी अगर नॉर्मल से जा रही है, और वाइड करेगी अगर एक्सेसरी पाथवे से नीचे जा रही है। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि इधर ऊपर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी तो 600 बीट्स पर मिनट जो है वो एवी नोड से नीचे जाएगी, मतलब को हिट करेंगी और एक्सेसरी पाथवे को करेंगी। एवी नोड तो गॉड स्पीड टू मैनकाइंड है, तो रोक लेगा, 150 से ऊपर नीचे नहीं जाने देगा, या 190 से नीचे ऊपर जाने नहीं देगा। एक्सेसरी पाथवे हैज गॉट नो सच लिमिटेशन। लेकिन होगा क्या कि हिस पर्किंजी सिस्टम जो है ना, उसमें वेलोसिटी बहुत तेज होती है, इज लाइक 3 to 5 meters per second versus accessory pathway या muscle it's 0.5 meters per second। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो जो AV नोड की इंपल्स यहाँ टोल प्लाजा पे रुकती तो है, लेकिन once it passes the toll plaza it goes into the motorway नहीं, autobahn पे, जिस पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, तो quickly goes and climbs back up into the accessory pathway, and once it comes into the accessory pathway depolarizes the accessory pathway। तो क्या कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है, एज अ गेट कीपर काम कर रही है। अब वो आई आपके पास ही आ गई, तो यू विल परफॉर्म द वेराकोमिल डेथ चैलेंज। वेराकोमिल डेथ चैलेंज क्या होता है, आप इसको आईवी वेराकोमिल देंगे एट्रियल फिब्रिलेशन को रोकने के लिए, यही देते हैं ना, यही दोगे ना, तो ये एवी नोड ब्लॉक हो जाएगा, गेट कीपिंग खत्म हो जाएगी। 400 से 600 इंपल्सेस एक्सेसरी पाथवे से नीचे आके आरओटी फिनोमेना करेगी, वीएफ होगा, द पेशेंट विल डाई इन योर आर्म्स। दिस हैपेंस, मेरे साथ 2 दफा हुआ है। एक दफा एब्लेशन करते हुए जरा सा कैथेटर हिलाता था, वो एफएम में जाता था और वीएफ में जाता था। और कनाडा की बात है, हम यहाँ नर्सों को बड़ा कहते हैं, उसने भी 50 जूल्स के ऊपर रखा हुआ था और पहला शॉक मारा उसने, वो वीएफ पहले वीटी में गया, उसने शॉक किया, वो वीएफ में चला गया, पूरा धोरा होके हमारे बैठ गया सीट, मतलब इट वाज अ हॉरिफिक काइंड ऑफ थिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। This is that atrial fibrillation in the presence of WPW. If you get an irregular, ये टैटू करा लो यहाँ कहीं। No, I'm not joking. मैं ये हमेशा स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हुए पिछले 20 साल से यही कह रहा हूँ। टैटू, 2 things on your somewhere where you will see it every day.
You get up in the morning, first thing you see, thigh shy पे करा लो, तो के every irregular white complex tachycardia is atrial fibrillation in the presence of WPW till proven otherwise, because you will save lives. और दूसरा is every regular tachycardia is ventricular tachycardia, regular white complex tachycardia is ventricular tachycardia. अच्छा, अब इसमें इसका डिफरेंशियल क्या होगा? atrial fibrillation में बटन ब्रांच ब्लॉक, वो किसी को कभी नहीं मारती, तो नई चीज है और ये लीगल चीज है, इसको आपने जरा सा भी बुरी तरह से हैंडल किया, किल गो। तो कैसे, कोई ऐसा टिप है जो आपको, रात को आएंगे ये 3 बजे, नींद शदीद है, पूरा मतलब फ्लैट होने का दिल कर रहा है दुनिया खत्म हो जाए, मतलब होता है ना, हैव यू एवर फेल्ट बैड कि दिल किया कि यार बस ये निकल जाए, और ये होता है। आई एम नॉट जोकिंग, बीएमजे में आपका एक जो आईसीयू वाला रेजिडेंट था, उसकी हालत थी, और हम सब की एट सम पॉइंट हुई है कि गॉड सेव मी फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, आई वांट टू स्लीप। तो सच आर द कंडीशंस जहां है, तो इसमें आपको टिप दे देता हूं, आपको मुश्किल नहीं होगी। Try to find the shortest RR interval. This is the shortest RR interval. How big is it? It's one large square wheel. है ना? ये देखो ना, 1 2 3 4 5 large square का मतलब 200 milliseconds, और हमने अगर इसको बीट्स पर मिनट में करते हैं तो 60,000 डिवाइडेड बाय 200, ये फॉर्मूला है। अगर आपने मिली सेकंड में चेंज करना है तो 60,000 डिवाइडेड बाय बीट्स पर मिनट, और अगर मिली सेकंड्स को बीट्स में करना है तो 60,000 अगेन डिवाइडेड बाय बीट्स पर मिनट। तो ये 300 बीट्स पर मिनट पर कंडक्ट कर रहा है, एडल्ट एजी नोड नहीं कर सकता। सो यहाँ 100% स्पेसिफिसिटी के साथ कह सकते हैं कि दिस इज atrial fibrillation in the presence of WPW, and what you're not going to do is do not give AV blocking drugs. Ideally cardiovertem, बुलाएं एनेस्थीसिया को, उसको अच्छी तरह से सिडेट करें एंड देन क्लीन कार्डियोवर्जन करें। और अगर नहीं आपके पास कार्डियोवर्जन की फैसिलिटी, आप डरते हैं, तो आप ऐसी दवा देंगे जो कि एवी नोड को भी ब्लॉक करेगी, लाइक एमियोड्रोन, फ्लेकेनाइट हमारे पास नहीं है, प्रोपाफेनॉन हमारे पास नहीं है, वगैरह वगैरह। सही है, ये बात क्लियर होगी? सो WPW in the presence of accessory pathway, you will kill the patient, so please do not do that. प्रोफेसर मसूद अख्तर थे, who is a world authority, passed away now, पाकिस्तानी, जो जितना हमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में पता है उनकी रिसर्च से आया शुरू में। तो एक लेक्चर में लाहौर आए हुए थे, तो मैं उनके साथ था, उसमें तो मुझे कहते हैं, यू नो, VPs don't kill people, doctors do, and he's very right। जो आपके पास आ जाता है स्टेबल VP, आप उसको तमाम किस्म की कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स देके उसको बिल्कुल उस दहज पे ले आते हैं जहाँ वो मरने की पूरी तैयार हो जाए। And that's what happens. Even आपको बता दिया कि atrial fibrillation 400 to 600 beats per minute goes down the AV node and the accessory pathway and they fuse in the myocardium. But ये इतना तेज होता है कि ये नीचे से ऊपर चला जाता है और distal end of the accessory pathway को depolarize करता है। This is a gatekeeping function of the AV node. AV node हमेशा साथ देगा। ठीक है, यही मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, 1220 है। इस तरह से करते हैं कि 10 के ऊपर सांस लेने के लिए 5 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाना, मतलब रिलैक्स करते हैं। तो 33-year-old woman with chest pain, worse on lying down, improves with sitting up. Okay, flew a week ago. What do you think? अच्छा, डायग्नोसिस पे नहीं आता। What are you looking at the pattern? हाँ, हिस्ट्री में है, हो सकता है हिस्ट्री में कुछ और हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। Concave diffuse ST elevations with peak. Okay, yeah. So clearly, there are STs which are concave up. There is a J wave over here, and there is elevation concave up here and in inferior. Now remember, इसको मैं अगले वाले इसमें दिखा देता हूँ आपको। Sorry, लीड 1 और 2 को दोनों को देखें, दोनों में ST elevation है। अगर ST elevation MI होगा, तो 1 AVL जो हाई लैटरल देख रही है और 2 3 AVL नीचे देख रही है, तो they are
opposite to each other. तो अगर ST elevation lead to 3 AVF में होगी तो 1 AVL में depression, reciprocal depression होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर दोनों जगह ST elevation हो जाती है 1 and 2 में तो पेरिकार्डाइटिस goes top of the list. अच्छा, मैं इसी तरह का एक लेक्चर ले रहा था किसी जगह, तो एक साहब ने खड़े होकर मुझसे पूछ लिया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हो सकता है. तो लैक ऑफ नॉलेज, मैं भी कुछ काफी साल पहले की बात है, नॉट दैट मेरी नॉलेज अभी उससे बहुत ज्यादा बेहतर होगी. सो आई वाज काइंड ऑफ स्टम्प्ड, बट नेचर टीचर्स यू. मैं वापस आया, मैं कॉल पे था, एक रैप अराउंड एलईडी आ गई जिसमें एलईडी जो है वो एपेक्स से घूम के आधी इंफीरियर एलईडी तक आ जाती है. ऐसी एलईडीज होती है. उसके बीच में मैंने देखा कि रेसिप्रोकल चेंज जो 1 AVL में था वो नहीं था. दोनों में ही तकरीबन ST एलिवेशंस आ रही थी. तो देन आई सेड कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा मैं रीक्वालिफाई करूंगा कि मोस्ट टॉप ऑफ योर डिफरेंशियल विल बी पेरिकार्डाइटिस, बट इट कैन बी, अगर टिपिकल कोरोनरी चेस्ट पेन है तो रैप अराउंड एलईडी के बारे में आप सोच सकते हो. Infralateral MI. इसमें वो डिपेंड करता है कि एलईडी कहां से बंद हो रही है. अगर पहली सेप्टल से बंद हो रही है, पहली डायगोनल से बंद हो रही है, बिल्कुल प्रॉक्सिमल या ऑस्टियल, फिर तो आपकी इंफ्रालैटरल एक्सटेंसिव होगा. लेकिन अगर आपकी मिड से आगे से बंद हो रही है तो 1 AVL स्पेयर हो जाएगी ना, ऊपर से जाती है प्रॉक्सिमल एलईडी. वो अभी मैसेज एलईडी का नहीं लेके जाना, मैसेज ये वाली चेंज जो है ये पेरिकार्डाइटिस के साथ क्लासिक है. That's what we should remember. But if someone ever asks you, a student or your resident or someone, तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए. Okay. And that's the reason कि 2 इधर है 1 इधर है. अगर इधर elevation होगी तो इधर reciprocal change आएगी. ये बड़ी gross example है of ST. ये diffusely elevated STs हैं. ये आप देखिए V2 से शुरू होती है और V6 में जाती है, 1 AVL में है, 2 3 everywhere except AVR because that's a cavity lead, and V1. इनसे इन दोनों में ST डिप्रेशन होगी. ठीक है, ये क्लासिक है, इसमें JVF भी आती है. अगर आप okay, 65 man comes for an opinion. Diabetic or hypertensive or dyslipidemia, all the risk factors, and prior history of exertional chest pain now settled. What do you think? क्या हो गया? में क्या है? ST elevation है और Reciprocal change in 1 AVL. रेसिप्रोकल चेंज भी थोड़ी बहुत है और I can see ST depression in V2, 3. ठीक है. मतलब नहीं, देखो ये वाली ST depressions are not significant because they are upsloping. और upsloping ST segments are generally rate related, non-specific. और उसकी मैं आपको आगे रीजन बताऊंगा क्यों होती है. So you've got Q waves in inferior knees with ST elevations. And इधर अगर आप इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें तो probably ये LVH का क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है. इसको अगर एक नीचे कर दो, हाँ हो सकता है ये 11 अगर आ जाए, 11 और मोर आ जाए AVL में R wave में, तो LVH का एक क्राइटेरिया है. तो अगर LVH होगा तो उसके साथ सेकेंडरी चेंजेस आ सकते हैं. और अगर ECG पे LVH आ रहा है तो दैट मींस कि इट इज सिग्निफिकेंट. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द STs टू कम डाउन? सपोजिंग मैं आप लोगों को इन्फॉर्म हो रहा है इंफीरियर में होने दो, कितनी देर बाद सेटल होगी? मतलब कि when would you get an ECG and say yeah, okay, I'm fine now? They have infarcted और the ECG baseline पे आ गई. 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन. So 6 weeks. अगर 6 weeks से ज्यादा ही ऊपर रह जाता है, इसका मतलब कि वो वाली सेगमेंट डिसकैनेटिक होगी, वो थिन आउट होके बाहर बल्ज कर रही है, और जब सिस्टली होती है बजाय अंदर आने के बाहर कर. एंड ऐसे पेशेंट्स को अगर आप चेस्ट पे हाथ रखो एंटीरियर एमआई हो तो बाकायदा वो सेगमेंट बाहर निकलती महसूस होती है. तो यू कैन इवन पिक अप ऑन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो दिस इज एन ओल्ड इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन. पहले चेस्ट पेन होता था एंड मे बी एन्यूरिज्मल फॉर्मेशन. सो यू गेट एन एको एंड स्मार्ट ये होगा कि आई वांट टू लुक फॉर एन एन्यूरिज्म, इंफीरियर एन्यूरिज्म. यू राइट टू दैट.
Okay, 71 man, shortness of breath at rest, prior shortness of breath upon exertion 1 year. Old MI, status post streptokinase, MPS was done, no viability in this ischemic segments. 40% ejection fraction was noted. Creatinine is 1.9, echo shows 35%. echo और MPS में 5% का difference normally होता है. So LVDT2 है, that's why this one grade 2 mild to moderate MRI, and this is the ECG. What do you think? Common late white complex regular, मैं आपको बताता हूँ regular है, आपने कहा white complex. So what is the differential? हाँ VT. Okay, और अच्छा idioventricular rhythm जो है ना, it's a benign entity and it should only be when you can't find anything else, and the rate is generally below 100. यहाँ तो rate जो है वो तकरीबन 150 के करीब है. So anything which goes above 120 is classified as ventricular tachycardia, not AIVR. ठीक है? So it's a wide complex rhythm. अच्छा, what do we look at in VT? VT में wide complex देखते हैं, हम एक्सेस शिफ्ट देखते हैं, एक्सेस शिफ्ट देखते हैं. इसमें क्या है एक्सेस? लेफ्ट एक्सेस. एक्सीलेंट. ठीक है. अगर एसवीटी में बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, वो एक्सेस शिफ्ट नहीं करता. तो एक्सट्रीम राइट जो है वो तो वीटी में होता है, लेकिन लेफ्ट भी कर सकता है वीटी, राइट भी, डिपेंडिंग ऑन वीटी कहां से आ रहा है, स्कार किधर है. इसको एमआई हुआ है, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन 35% है, दैट मींस देयर इज अ स्कार. अच्छा, और क्या देखते हैं आप? एवी डिसोसिएशन देखते हैं कि अगर ए और बी डिसोसिएट हुए तो यहां अगर आप स्कैन करें तो आपको किसी भी जगह पी वेव नजर नहीं आती. ठीक है. एंड 20 to 30% एवी डिसोसिएशन नजर आती है. फिर कैप्चर बीट और फ्यूजन बीट. कैप्चर बीट इज अ normal sinus beat that happens during a tachycardia without affecting the ventricular tachycardia. और फ्यूजन इज जब वो निकलता है, वो ventricular tachycardia की बीट के साथ फ्यूज होता है, it can give you a fusion beat. ये क्यों होता है? VT नीचे चल रहा है, साइनस ऊपर चल रहा है, साइनस स्लो है, VT ज्यादा तेज है. VT नीचे से AB नोड को डीपोलराइज करता रहता है, तो P जब आती है यहाँ ब्लॉक हो जाती है. बट समटाइम्स P आपको मिल सकती है खुली मिलेगी तो आप ऑटो भाग पे जाएंगे and you will capture the entire ventricle. You will get a normal looking QRS. इसमें नहीं है, इसमें कैप्चर फ्यूजन नहीं है. So इसमें all you are seeing is a bundle branch block pattern and a left axis deviation. Limitations होती हैं. अच्छा, अब दूसरा टिप ये है कि if you see a wide complex rhythm, 80% of the times it will be VD अगर आप तुक्का लगाएं, 80%. अगर coronary artery disease की prior history है तो 95% of the times you will be right to say ventricular tachycardia. ठीक है. ओके. अच्छा, ये इसके बीच में जो है जो एरोस लगाए हैं, ये पॉसिबल पीस हो सकती हैं जो इसको इंडेंट करने की कोशिश करें, but that's a higher level of consideration. You don't need to find peas. So this is beta. This is ventricular tachycardia. सर मेरा क्वेश्चन है सर, ऐसे ही हमारे पास लास्ट कॉल में था, ऐसे वो दोनों इसी तरह की और एक को पेशेंट को एडमिशन दिया और वो रिवर्सल हुई, नॉर्मल साइंस सिस्टम हो गया उसका, और दूसरे पेशेंट को एडमिट दिया और वो नॉर्मल. तो कैसे डिफरेंशिएट करें? So अगर किसी देखो, there is an entity called idiopathic ventricular tachycardia. वो नॉर्मल हार्ट्स में होते हैं, यंग लोगों में होते हैं, and they come from either left fascicle से आते हैं या right ventricular outflow tract से आते हैं. ये islands of normal conduction के areas होते हैं, and they are very sensitive to adenosine. अब इसीलिए एल्गोरिथम जो ACLS का, जिसमें मेरा हमेशा उनसे लड़ाई होती रहती है कि VT में आप adenosine क्यों दे रहे हैं, वो देते हैं इस एंटिटी को रूल आउट करने के लिए. लेकिन अगर 80 साल बाबा आ रहा है जो कि जिसको coronary artery disease injection पर don't give adenosine because 95% आप it's ventricular tachycardia. ठीक है. तो some tachycardias can break, VTs can break with adenosine. Atrial tachycardias भी कुछ adenosine से ब्रेक हो जाते हैं. हम उस पर ये नहीं कह सकते कि SVT है. Okay. 79 syncope less than 1 minute recovery. Short recovery जो है न्यूरो एपिलेप्टिक वो आउट हो जाता है, either न्यूरोकार्डियोजेनिक होगी या कार्डियोजेनिक. ठीक है. लैकन एक्शन से कितने लोग आए हुए? कोई है?
लास्ट टाइम आए थे, they were very interactive, तो मुझे इसलिए बाकी अभी स्टैंडर्ड उनका। ओके जी, क्या कह रहा है ये? What do you think? Let's see your ability to discern. So now we take it like a normal ECG because इसका range जो है वो normal ECG है. So my first question would be, is it sinus rhythm? So sinus rhythm है because you can see P waves which are upright in D2 and inverted in AVR. ठीक है? And P before each QRS and each QRS following a P wave. Agree? Yes. Okay. तो फिर ये दिखाई क्यों? Excellent. ब्रॉड कॉम्प्लेक्स हुआ तो हमने देखा राइट V1 को देखा तो हमने कहा ये RSR प्राइम है, तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न है, और डीप S वेव इन B6 जो मैंने भी आपको बताई, तो ये राइट बंडल तो हो गया। Now whenever you see a right bundle block, always look for fascicular block, क्योंकि देख लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, इसका मतलब लेफ्ट एंटीरियर fascicle भी गया हुआ है, तो ये बायफेसिकुलर ब्लॉक हो गया। जब बायफेसिकुलर ब्लॉक एस्टैब्लिश हो गया, the next thing to look at is the PR interval, because अब क्या रह गया, राइट ब्लॉक है, लेफ्ट एंटीरियर ब्लॉक है, the only conduit from the sinus down to the ventricle is the posterior fascicle and AV node। उसके ऊपर अगर डिले आएगा तो PR interval will prolong। तो PR interval आप देखिए ये काफी prolong है, ये तकरीबन 360 मिली, मतलब इट्स ग्रोसली, दिस इज, पुराने वक्तों में हम इसको ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक कहा करते थे। ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक बेसिकली कंप्लीट एवी ब्लॉक होता है, सब कुछ ब्लॉक होता है, सो इसको आप कहेंगे बायफेसिकुलर ब्लॉक विद फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, दैट्स द न्यू टर्मिनोलॉजी दैट दे यूज। और इसको सिंक भी हुई है पेसमेकर, दैट्स इट। So this is what it is like, right bundle block, left anterior block and left usually left यहाँ से block होता है, ठीक है, लेकिन left anterior fascicle यहाँ से block हुआ है। अब impulse is going down the AV node has bundled and down the posterior fascicle, इसके ऊपर अगर डिले आ गया, AV node में डिले आ गया या यहाँ डिले आ गया, it's going to, but अगर syncope के साथ आ रहा है, pacemaker is needed। Okay, 34-man palpitations at rest with lightheadedness, very brief episode. He is again status post-MR, good medical therapy. EF is 35%, magnesium is 1.8 and potassium is 3.4. White complex, regular tachycardia. What would be the rate roughly? 170. इसका नहीं 170 नहीं है, इसकी थोड़ा सा, आई एम सॉरी, ये इसकी जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसका रेट इज अराउंड 100 प्लस। तो व्हाट वुड बी द डिफरेंशियल? अच्छा, so ventricular tachycardia can also be always be considered because इसको MI हुआ है, लेकिन sometimes people who have magnesium and इसकी deficiency होती है, sometimes they can have, or if they have ischemia and they reperfuse, तो accelerated idioventricular rhythm आ सकते हैं, and this falls in that category of rate। ठीक है, इसका जो rate है 107 है, so it can be AIVR versus VT, but अगर AIVR होगा तो ये hemodynamically unstable नहीं होते, अगर hemodynamically unstable treat as VT। So what about anti-doping AVR? less likely कि वो इस तरह से होगा, और वो बहुत तेज होते हैं। AIVRs excessive pathway conduct very rapidly, तो वो slow नहीं होते। सर हाँ। इडियोवेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को AVIR से कैसे डिफरेंशिएट करें? रेट आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा या रिपरफ्यूजन हो रहा होगा, आमतौर पे जब आर्टरी खुलती है ना, खुद भी खुल जाए, तो यू गेट AIVRs, और आप ये बहुत देखेंगे अपने ER में, AIVRs should not be taken as VT because बिल्कुल फर्क हो जाती है फिर ट्रीटमेंट, आप उसके पीछे लग जाएंगे। तो फ्रेंडली रिदम है, it's an automatic rhythm, it is helping you, it is telling you, it's a sign of reperfusion। अच्छा, this is important to understand, ये इस तरफ का इलेक्ट्रोएनाटॉमिक मैपिंग हुई है, ये रेड जो है ये सारा स्कार है, और ये जो बीच में पर्पल है ये नॉर्मल लिविंग फाइबर है, लेकिन चूंकि स्कार के बीच में तो इसमें कंडक्शन स्लो हो जाती है,
And remember, re-entry के लिए जरूरी है कि you have a fast pathway and a slow pathway. So this is the fast pathway, this is the slow pathway, and you can keep over here also. ये scar, ये normal, not normal, near normal looking myocardium in between. That is what produces scar-related ventricular tachycardia. They can break into VF. That is why ICD डालने से post-MI patients को mortality benefit हुआ है. Very few procedures in cardiology cause mortality benefit. CRT, ICDs do, because आपका risk काफी ज्यादा होगा. Okay जी, 10 नंबर आगे. 32-year-old man, palpitation, syncope, playing with son. Escalator पे भाग रहा था और suddenly collapsed and then woke up. जब echo किया तो was normal, labs were unremarkable, and this is the ECG. ये क्या लग रहा है? Narrow complex, wide complex, regular, fast. ठीक है? So ventricular tachycardia का सोचिए over here, but the guy is young, but exertion के साथ आया है ये rhythm. तो अगर exertion के साथ wide complex rhythms आ रहे होते हैं तो उसमें आपकी differential diagnosis में scar ventricular tachycardia आना चाहिए. लेकिन remember, scar सिर्फ left पे नहीं होता. और echo जब हम कहते हैं, echo हम आमतौर पे left ventricle देख रहे होते हैं. तो अगर आप राइट वेंट्रिकल को थोड़ा अब इसमें जो VD की मॉर्फोलॉजी क्या है, लेफ्ट बंडल टाइप है या राइट बंडल टाइप? लेफ्ट बंडल. ठीक है, V1 इज नेगेटिव, लेफ्ट बंडल टाइप है. तो इसका मतलब है VD राइट से आ रहा है. अगर राइट से आ रहा होता VD तो राइट बंडल पिक्चर होगी. तो राइट से आने वाले इस किस्म के वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के एक्सर्शन से होते हैं, उसमें एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया इज probably top of the list. और फिर RBOT-VD नॉर्मल लोगों में होते हैं. एंड ठीक है, जिस वक्त आपने ये उसकी ECG की, जब वो रिवर्ट किया आपकी ट्रीटमेंट से ER में, ये ECG आ गई. हाँ जी, क्या ख्याल है? इसको कोई देख रहा है? आप लोग शायद दूर हैं, प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रही. ये जो देखो, ये वाली जो look at this beat. This is a peak looking over here. Epsilon wave. ठीक है, this is an epsilon wave. And ये 20 to 50% लोगों में होती है जिनको arrhythmogenic right ventricular dysplasia होता है. This is the epsilon wave. ठीक है. Whenever someone comes in with syncope, young person, this kind of history, so long QT, short QT, WPW, epsilon wave for arrhythmogenic right ventricular dysplasia and Brugada syndrome. And this is what happens. See, this is the RV, and the RV में ये जो सारा का सारा नजर आ रहा है ना, ये fibrofatty chain है. They die of two ways. One is arrhythmia, जिसमें young होंगे उस वक्त तक RV failure नहीं होगा. अगर वो survive कर जाते हैं तो फिर they die of right ventricular failure. It's a very bad kind of disease. I have a few patients जिनको ICDs पढ़े हुए हैं और उनको shock appropriately पढ़ते हैं. So epsilon wave नहीं miss करनी. Syncope is the entry point and they will see you. So उसमें ये long short QT ये वाली चीजें 4 में ये भी टैटू करा लें ताकि मिस ना हो, because LV normal होता है. जहाँ LV normal हो हम कहते हैं everything is fine, and they are the ones who die then. And जब वो वापस आएगा everybody will be able to see the epsilon wave. The epsilon wave आपको नजर नहीं आएगी. It's the credit is when you look it up front and say hey, this is एप्सिलॉन वेव की डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज होती हैं. ये एक इस तरह की होगी, एक इस तरह की लगेगी, एक इस तरह की बायोफेजिक्स ही लगेगी, और ये डिस्टल एंड ऑफ द QRS की तरह लगेगी. होता ये कि रीपोलराइजेशन चेंज है जो कि डिलेड आती है क्योंकि वहां स्कार होता है RV फ्री वॉल में सारा. ठीक है, चलें, दैट्स गुड. ये कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं. 28-year-old man, syncope on the flight from Malaysia. Short episode with quick recovery. Sister died at 20. Normal LV function. Sudden death की history is vital. Anyone who has syncope, please ask. दूर पार का भी कोई मरा है, sudden death का मतलब within 1 hour. And अगर young age पे sudden death हुई है, कान खड़े कर लेते हैं, चाहिए for all genetic kind of abnormalities. Ani, what do you think? ठीक है, सही. अभी तो जो मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया कि यू विल गो टू ब्रुगाडा, बट अगर ये वॉक करता है, आ जाता है, ये हमारे पास आया था
बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढा ये इसको। यहाँ तो मैंने सिस्टर को मार दिया, उसकी सिस्टर को फ्रांस में आईसीडी लगा हुआ था। So this is what Brugada change looks like. It's an atypical right bundle branch block pattern. अब आप देखें तो यहाँ deep S wave नहीं है, deep और wide S wave नहीं है, ना deep और wide S wave इधर है, इधर ST segment elevation है with a bump in the ST segment. So this is sodium channelopathy है, ये repolarization current होता है, चूंकि एंडो और एपिकार्डियम के बीच में डिफरेंस आ जाता है, और जब भी आप सेल के पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे जोड़ देते हैं तो करंट रन करता है। तो एपी और एंडो में ये करंट रन करता है एंड दे कैन ब्रेक इनटू वीएफ और ब्रेक इनटू वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, जिसमें आपको बताया। एंड दिस इज फर्स्ट वन इज द क्लासिक टाइप व्हिच ब्रुगाडास डिस्क्राइब्ड। उसके बाद फिर लोगों ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, टाइप 2 और टाइप 3 ये भी होते हैं। इनको ढूंढने के लिए क्या होता है कि आप ईसीजी जो है ना, ईसीजी जो V1 V2 है, थर्ड फोर्थ इंटरकॉस्टल से ऊपर कर दें एक इंटरकॉस्टल स्पेस, तो समटाइम्स ये पिक हो जाता है। बुखार में अगर आप ईसीजी लें तो टाइप 2 टाइप 1 में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड फ्लेकेनाइड या एजमेलिन का जो है आपके पास अगर हो, डॉक्टर यावर है वो एजमेलिन या फ्लेकेनाइड के साथ वो टेस्ट करते थे जमाने में, तो वो टटेस्ट करें तो ये चेंज आ जाता है। सो इफ यू गॉट अ टिपिकल हिस्ट्री, सिस्टर को भी हुआ है और टाइप 2 चेंज आ रही है तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, या नहीं आ रही या उससे कहें जो फीवर हो तो ईसीजी का, एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम आईसीडी। सर टाइप 3 को थोड़ा एक्सप्लेन करें। टाइप 3 जो है ना, बेसिकली मैं इसलिए उस पर वक्त जाया नहीं करता बिकॉज ये दोनों सैडल शेप्ड है, ठीक है, ऐसे करके ये जा रहा है, ये भी है थोड़ी आधी सैडल है, ये लेसर डिग्रीज है एंड समटाइम्स दे कैन बी नॉन स्पेसिफिक। दैट इज व्हाई इस पे ट्रीट नहीं आप करेंगे, यू नीड टू शो दिस ट्रांजिशन into that one. This is classic Brugada, ये आपको मिल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं। चलो 5 मिनट ब्रेक ले लें। राइट में ब्रांच कौन से बड़ा मिक्स हो जाती है? अच्छा नहीं, मिक्स नहीं होती है। राइट में आर एस आर प्राइम होगा, प्राइम नीचे आएगा सीधा एंड देन इट विल स्लोप डाउन इनटू ए टी वेव, सेकेंडरी टी वेव इन्वर्जन जो मैंने आपको बताया था। ये ऊपर जाता है, ऊपर से एसटी एलिवेट कॉन्वेक्स अप, एसटी सेगमेंट हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटा सा बम्प आ जाता है वो डिलेड करंट की वजह से। सो दैट इज नॉट राइट बंडल, सो दैट्स व्हाई एवरीवन कॉल्स इट एन एटिपिकल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। बस और है। अच्छा सो एप्सिलॉन को सिर्फ V1 में विजुअलाइज होती हैं। V1 में यूजुअली होती हैं, और जगह पर भी आ सकती है अगर बहुत रोबस्ट किस्म की है, बट अगर नहीं है तो V1 हमें सिर्फ V1 पे देखना होगा या V1 इज द क्लासिक वो। लेकिन अगर किसी को बहुत शक है और V3 में भी आ रही है तो एक केस, बट V1 ऊपर लगी होती है ना, जनरली जो एल्बोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेजिया वो राइट फ्री वॉल, अपर राइट फ्री वॉल एंड समटाइम्स इट कैन एक्सटेंड टू द आउटफ्लो इस बार, ठीक है। तो बैठे हुए हैं सारे तो फिर कर ही लेते हैं। चलो ओ सॉरी 21 ईयर ओल्ड सिंकपी, सारे सिंकपी हैं बिकॉज दैट्स वेयर दे विल हिट यू। सिंकपी अनहेरिटेड का मतलब है पता ही नहीं चला, एक हेरिटेड होता है पता चल रहा है, टांगे जेली लाइक हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, पर्दा गिर रहा है नीचे, कुछ नहीं है। तो प्रोड्रोम कहेंगे तो मेरा ख्याल से वो फिर एपिलेप्सी की तरफ चले जाएंगे, प्रीमॉनिटरी सिम्पटम्स, यस। Okay, so syncope unheralded, no comorbids, echo normal, labs normal, and functionally track athlete, functional capacity, track athlete. In the ambulance, brief run of polymorphic VT on the monitor. ठीक है, आपने 911 बुला लिया, हमारे कॉमन एम्बुलेंस के बीच में उन्होंने ECG लगा ली है और ECG के बीच में ब्रीफ रन ऑफ पॉलीमॉर्फिक VT आया है, तो इसमें क्या लगेगा? ट्रैक एथलीट है खातून। हाँ साइनस रिदम है, साइनस रिदम है, बिल्कुल सही है, साइनस रिदम है और हल्का सा ब्रैडीकार्डिया है और नॉर्मल एक्सिस है, पीआर इंटरवल नॉर्मल है, ठीक है। और आपकी जो आर वेव प्रोग्रेशन है वो अच्छी है, आपकी जो आर और एस ट्रांजिशन है वो V4 में है, V5 जो है इस एम्पलीट्यूड में V6 से बड़ी है, दिस इज ऑल नॉर्मल। तो व्हाई हैव यू प्रेजेंटेड दिस?
हिस्ट्री लो ना, हिस्ट्री पूरी उसने अमर वाले ने कहा कि भाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पॉलीमॉर्फिक वीटी हुआ छोटा सा, सॉरी पॉलीमॉर्फिक वीटी का रन आया छोटा सा, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं इसको, बहुत ही ब्रीफ था। What are the thoughts? Some negation and One polymorphic diagnosis or ECG तो देखा है, इसमें ECG में क्या चीज देखना चाहोगे? PR interval is short. Okay. Log and delta to 50. हाँ, तो PR interval is not short, PR interval is fine, more than 120 milliseconds. QT के ऊपर आप काम करेंगे, नहीं शॉर्ट आप उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको मेजर जरूर कर सकते हैं। तो आपने मेजर करके उसको करेक्ट करना है। You have significant U waves also, and remember QT interval changes with rate. So उसको करेक्ट, अब इस पे करेक्ट कर नहीं सकते। तो इसमें ये चीज दिखाई जा रही है कि ECG में ये जो आपका J वेव आ रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये जो आपकी J वेव आ रही है, ये अर्ली रिपोलराइजेशन में भी आ सकती है, लेकिन बेनाइन मैलिग्नेंट उसमें भी आ सकती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द एंडो टू द एपिकार्डियम, ठीक है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल का ऐसे है और इनका ऐसे होता है, इसके बीच में ये J वेव आ जाती है। अगर इस किस्म की हिस्ट्री है और कुछ नहीं मिल रहा और J वेव मिल रही है, आस्क फॉर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेथ, इसको छोड़ दें, ये थोड़ा सा क्योंकि फॉर कंप्लीशन से ये इसको डालना पड़ा है, ये बहुत रेयर चीज है, यू प्रॉब्ली विल नॉट कम अक्रॉस। क्या हो गया इसमें, आगे जाने से मना कर दिया। अच्छा, J वेव जो है ना नॉर्मली वो ऐसे होती है कि आपकी ST सेगमेंट एलिवेट हो सकती है, यू कैन have a J wave and an ST concave up. You can have a terminal part of the QRS as J wave जो मैंने उसमें दिखाया अभी आपको, and you can have a J wave with no ST elevation. तो ये चारों पैटर्न्स नॉर्मली आ सकते हैं with J with early repolarization, even benign. B वाली है तो एप्सिलॉन के काफी सिमिलर नहीं लगी वो B वाला जो। हाँ, you are right, लेकिन J wave hardly ever V1 में आती है। अच्छा, ये रीजंस है फॉर J पॉइंट प्रीडोमिनेंस, हाइपोथर्मिया, हाइपरकार्डिया, हाइपर, तो ये आप बेशक अपना उस पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं एक्टिंग ऑन नियरली द सेम एरियाज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आती है, बट ये रेयर है। अच्छा जी, 54-year-old man, chest pain of 3 hour duration, all the risk factors, sedentary lifestyle, exertional chest discomfort for the past 3 months, hemoglobin is 8, बाकी rest of the labs are unremarkable। क्या ख्याल? अनीमिया तो है, अनीमिया ने क्या किया, कुछ किया या नहीं? So let's say कि अगर आपने मुझे फोन किया और आपने मुझे बताना है कि क्या है आपके ख्याल में, it is presents to with ECG of consistent with STEMI with STEMI कहाँ का है? ठीक है, तो देखो यहाँ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल पैटर्न लग रहा है, Q बना है और R wave is up and then you have an ST up and T wave is coming down। यहाँ भी ST up है, R wave prominent है, यहाँ STs हैं, ST up। तो बेसिकली एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है और ये बिल्कुल प्रॉक्सिमल बंद होगी क्योंकि AVL के बीच में भी हो रही है, तो डायगोनल से पहले LED बंद हुई है and then you have got reciprocal change। Good। अच्छा, ST सेगमेंट डिप्रेशन क्यों होता है? ST सेगमेंट डिप्रेशन इसलिए होता है कि अगर सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया हो तो चार्ज नेगेटिव हो जाता है और जो नॉर्मल सरफेस होती है वो पॉजिटिव रहती है। एंड अगर आप दोनों में एक लीड लगा ले तो क्या होगा, कहां से कहां करंट जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर है ऐसे जाएगा और अगर V6 इसके ऊपर लगी हुई है यहाँ तो आपको ST डिप्रेशन, दैट इज द बेसिस ऑफ ST सेगमेंट डिप्रेशन। अगर आपको ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया हो जाता है
तो आपकी जो नॉर्मल मायोकार्डियम से टुवर्ड्स दैट इनर्ट स्पेस करंट आएगा, तो जो भी उसके ऊपर लगा होगा उसमें एसटी एलिवेशन होता है। ठीक है, क्यू वेव्स कैसे बनती है? अब ये अगर इंफार्क्ट हो गया, अभी तो स्कीमिक हो रहा है, लेट्स से कि इंफार्क्ट हो गया, पूरे का पूरा इंफार्क्ट हो गया, तो जो लीड यहाँ लगी हुई है वो ऑपोजिट साइड की जो लीड है उसकी एक्टिवेशन देखेगी, और उसकी एक्टिवेशन एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम होगी, so the vector will go away, so you get a Q wave. So Q wave is actually not any wave in that area, but it's the normal activation on the opposite side through that inert window जहाँ कोई current नहीं है। Okay, इसको निकाल लेते हैं आगे। And this is how we evolve. You first get tall T's, normal tall T's, जैसे मैंने आपको बताया था wide base tall T's QRS से बराबर हो गई है, then it lifts the ST segment, then you start forming early Q waves, and then ST segments depress and T waves start inverting, then SQ forms, ST segment settles down, T wave inverts, and in months to years only the Q waves remain. That's the natural normal evolution of Q wave infarction. Pericarditis में भी इसी किस्म की evolution होती है, takes much longer because it's not happening through the arteries, it is happening in the surface, but वो evolve ऐसी होती है, ST elevation बैठेंगी, फिर T waves invert होंगी, फिर T waves सीधी हो जाएंगी. Anyone with myocardium pericarditis with ECG change, उसमें और coronary artery disease, acute coronary syndrome की mortality में क्या फर्क है? कहाँ लेंगे? अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस आ जाता है, आप लोग मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं, कहाँ डालेंगे मरीज को? सीसीयू घर भेज दें, पेरिकार्डाइटिस है, ईसीजी में कॉनकेव एसटी एलिवेशन है, और ये है कि क्रंच है, बेड का क्रंच है, और आप मैं मिल गया हूँ आपको फोन पे, तो क्या किया? उठाएं और कहाँ डालें? The mortality is the same for acute coronary syndrome and pericarditis with ECG change. So CCU, CCU. Myocardium claimed है, arrhythmia, arrhythmic death, सब चीज वैसी है। हाँ, हम करते हैं। I never take pericarditis anywhere else. But pericarditis don't fall. No. So when pericarditis comes and you don't have an ECG change और खिंच उसको बस दर्द हो रहा है मुंह, and आपने पेरिकार्डाइटिस का डायग्नोसिस कर लिया, तो उसको आप दवाई वगैरह दे के ऑप्टिमाइज करके घर भी जरूर भेज सकते हैं। If there is ECG change, if there is ST elevation, that means there is significant myocardial chunk which is now epicarditis हो गया। और हार्ट में जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, दिल किसी का कभी भी कुछ भी कर सकता है। Have to be very careful. Okay, 43 man chest pain on exertion while walking on a full stomach. Smoker, sedentary lifestyle, hemoglobin अच्छा है, rest of the labs were unremarkable. Normal echo study. Chest pain on full stomach है। इसकी कोई significance है? Full stomach, खाली stomach, सहरी के बाद वॉक किया तो दर्द हो रहा है। जब खाना खाते हो शंट हो जाता है, ब्लड गोज टू द गट, और अगर कोई भी क्रिटिकल स्टेनोसिस होगा खराब हो जाएगा। आप कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी की जो चेस्ट पेन की क्लासिफिकेशन है उसमें एक क्विक क्लास मूव कर सकते हो विद अ फुल स्टमक। 1 थे तो 2 हो जाओगे, 2 हो तो 3 हो जाओगे। लोग बताएंगे मुझसे चला ही जाता खाना खा के। इसमें क्या नजर आ रहा है? excellent ठीक है। So ST depressions नजर आ रहे हैं, sometimes people disregard these, ये देखो, and there are 3 millimeter horizontal ST depressions. These are very sensitive and specific for ischemia. ठीक है। So 30-day mortality of 35%. कार्डियोलॉजी में कोई चीज 5% होती है तो हाई रिस्क कहते हैं। 35% is close to prohibitive risk. That's what you deal with. Sir, ये है क्या? Ischemia है ना? नहीं, ischemia because of coronary artery disease, वो खाना खाता है तो उसको stenosis. what is ischemic preconditioning? Anyone? इम्तियाजी नंबरों के लिए ischemic preconditioning, यानी कि इस पे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। You'll have a lot of my respect if that matters at all.
अफ्तारी भी करा सकता हूँ उसको। वो changes जो Adaptation, हाँ adaptation to ischemia. Predisposition. Predisposition. so basically collateral बनते हैं when you go to the ischemia threshold and those collaterals then tend to improve you over time. इस पर आपको इंसल्ट अगर होगी तो आपको इन्फार्क्ट छोटा होगा साइज में because you are already protected versus someone who suddenly got कभी पेन नहीं हुआ या कम पेन हुआ तो they tend to have serious kind of infarcts. तो ये जो ST segment depression है ना ये उसको हुई है, वो चलता है, उसने अपने आप को प्री कंडीशन किया हुआ है, लेकिन जब वो खाना खाता है तो उसका जो है वो रिजर्व जो है उसका वो नहीं होता. 35% मोर्टेलिटी इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. तो सर ये बेसिकली जो स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट्स होंगे उनमें कोलैटरल्स बने होंगे. सो कोलैटरल हाँ स्टेबल क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वालों में होगा, लेकिन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये अनस्टेबल सिचुएशन में चला गया है. जब वो खाना खाता है तो उसको दिस इज वर्सनिंग एंजाइना. वर्सनिंग एंजाइना इज अनस्टेबल एंजाइना, और अगर आप उसको ज्यादा वर्सन कराएंगे तो ये इन्फार्क्ट करेगा. तो इसको देखा जाना चाहिए. एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन कि कितनी दवा ले रहा है. सर जो लीड 2 है उसमें जो डाउन स्लोपिंग है इसको भी एसटी डिप्रेशन कहेंगे. लीड 2 में ये ये एसटी डिप्रेशन जरूर है अगर आप इसके साथ कर लेंगे वो, लेकिन ये आप स्लोपिंग है. तो दे आर नॉट अप स्लोपिंग और नॉट स्पेसिफिक. नीचे जो लीड 2 है ना ये लीड 2 जो है दिस इज लेस स्पेसिफिक, ऑल्दो जे पॉइंट के बाद एक डेक आता है जो कि फ्लैट है एंड देन इट गोज अप. सो दिस मे बी द टी वेव एंड एसटी सेगमेंट ये वाली है. सो प्रोबेबली द होल वो ये एक्सटेंसिव चेंज है. टेरिटरी नहीं बता सकती एसटी डिप्रेशन, बट अगर हर लीड में एसटी डिप्रेशन आ रही है दैट मींस कि 3 वेसल होने का चांस ज्यादा है. और दूसरी चीज 3 वेसल का क्या बताती है कि अगर एवीएल में एसटी एलिवेशन हो, AVL में ST elevation हो, तो if someone comes with the chest pain with ST segment depression, always look at the AVR. अगर AVR में ST elevation है, तो that is a sign of a 3 vessel disease or a left main disease. These are the highest risk patients. अच्छा, ST segments down sloping होती है, up sloping होती है और horizontal होती है. और ये जो लाइन लगाई हुई है ना इन्होंने J point से 80 milliseconds down लगाई हुई है. This is called ST80. This is the reference point. सारी ST segment elevation यहाँ आप measure करेंगे, क्योंकि आप शिकागो में कर रहे हैं, आप टिम्बक्टू में कर रहे हैं, आप इधर कर रहे हैं, तो वो एक we will be speaking of the same point. It वो कर लेती है. और अगर ज्यादा टैकीकार्डिया ST छोटी है तो ST 60 पे भी 1.5 दफों पे भी कर सकते हैं, but not less than that. Oops, sorry. ओके तो ये तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगी. ये इसको छोड़ दो, ये बहरहाल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ कांसेप्ट. ये एसटी सेगमेंट अप स्लोपिंग है. इसका देख लो यहाँ रेफरेंस में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये 1 सेकंड के ऊपर जितना भी इसका टॉल होगी ना उतना नॉन स्पेसिफिक चेंज है. जितना फ्लैट होगी, जितना वो ये एरिया कम है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो रही है. The principle is the horizontality of the ST segment that is more specific for coronary ischemia. इसको छोड़ दें, हमारा वक्त ज़ाया करेगी. 28-year-old man, traffic accident में multiple injuries with sepsis, 80-50 BPM, pulse is 55, temperature is 33 degrees Celsius. तो आपका ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा था, ये J-wave आ गई at 33 degrees, 36.8 हुआ, 5 होगा. So if you pick this up on an ECG, it's a non-specific, मतलब लोग देखेंगे भी नहीं इसको, लेकिन अगर आपने पिक कर लिया, मे बी आपको उस वक्त नहीं पता कि ये हाइपोथर्मिक हो रहा है. हाइपोथर्मिया में अगर पहले थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा पहले पता चल जाए तो कोई एडवांटेज है, बहुत बड़ी एडवांटेज है. इससे पहले कि वो पूरा सेप्टिक हो फैले सारी चीजें, अगर आप अच्छा उसको डोज दे देते हैं तो वहां आप दुश्मन को गिरा सकते हैं. ठीक है, समटाइम्स इतना बड़ा भी हो जाती है J-wave. अच्छा, 58-year-old woman with chest pain, CCU, smoker, on inotropes, troponin negative है, negative and troponins, and labs are unremarkable. ECG क्या कहती है?
woman, typical chest pain, negative troponins. This is the ECG. Inversion है टाकासुबु, हाँ मतलब कि मैं can't deny टाकासुबु आजकल की सेटिंग में, लेकिन बिफोर दैट टाकासुबु तो बचा लेगा ना, वो तो खुद ही ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो कोई जान ले? एक्सीलेंट, किसने कहा है? क्या बात है, तुम्हारी वैलेंस और एप्सिलॉन। तो हाइन वैलेंस ने डिस्क्राइब किया था। उस जमाने में ट्रोपोनिन्स नहीं होते थे, उन्होंने कहा था कि दे कम इन विद टिपिकल चेस्ट पेन, यूजुअली वुमेन, एंड दे विल हैव you will discharge them because इनके troponins negative आएंगे with these ECG changes, and they come within 10 to 15 days with in big time anterior infarctions, and some of them will die. Troponins इनके उस जमाने में Troponin कैसे negative है? तो ये This is a inotrope reperfusing. नहीं क्यों नहीं हो सकता? कैसे? हो सकता है, कोई इंसल्ट नहीं हुई और inotrope में भी चला गया और troponin negative। हाँ हो सकता है। आप vasodilate हो जाए, हो सकता है आपका LV फंक्शन ट्रांजिएंटली डाउन हुआ हो सकता है आप सेप्टिक हो, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। Troponins do not define a lot of times, हो सकता है आपकी इतना टाइम इस्कीमिया ना रहा हो, स्टटर कर रहा हो, और यही होता था उसमें भी। और उन्होंने फिर ये देखा कि इनकी ऑस्टियल या प्रॉक्सिमल एलएडी लीजन्स होते थे। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया था, बिल्कुल इस तरह का उसका थोड़ा ट्रोपोनिन जरूर निकला हुआ था। मैंने इसी चीज चेंज देखी, तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मैंने कहा यार ये प्रॉक्सिमल एलएडी लीजन है। अब जब मैं कैच की, ओनली आर्टरी प्रॉक्सिमल एलएडी लीजन, तो दिस इज वेलेंस, हाई वेलेंस के नाम पे वेलेंस टाइप ऑफ चेंजेस। ये बाइफेजिक चेंज आती है, एंड समटाइम्स हंग डाउन डीप टी वेव चेंजेस भी आ सकती है इस किस्म की। B4 में इधर हो सकती है, बाइफेजिक एंड हंग डाउन, दोनों पैटर्न आ सकते हैं। तो टिपिकल चेस्ट पेन विद दिस काइंड ऑफ एन ECG, think of Wellens syndrome, and these are Wellens type. टाइप ए या टाइप बी कोई भी हो, उसमें कोई वो तो नहीं, डिफरेंस तो नहीं होगा। देखिए आपको ये भी मिल सकता है, आपको ये भी मिल सकता है, आपको ये भी मिल सकता है, नॉट डिपेंडिंग ऑन के हाँ पैटर्न। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दीस पैटर्न्स, एंड ये कभी नहीं बताते ऑस्टियल कौन सा है, एलईडी कौन, प्रॉक्सिमल कौन सा है। सो जस्ट रिमेंबर कि इस सिनेरियो में अगर ये चेंजेस आ रही हैं तो कॉल देम बैलेंस, ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मैन। मल्टीपल लीड्स में टीनेज इन्वर्जन होती है सर। सिर्फ बाइफेजिक इवॉल्विंग, आप समझते हैं कि इट्स नॉन ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया ऑफ अ शदीद इंटेंसिटी। अच्छा जी, ये क्या है? ये अब टीवेव चेंजेस के पैटर्न्स मैंने आपको दिखाए हैं। ये सिमेट्रिक टीवेव इन्वर्जन इस्कीमिया, बैलेंस ऐसे हो सकती है, पीई में भी हो सकती है, राइट साइडेड में V1 V2 V3 पेशेंट सिम्पटमी के साथ आया है, सांस हो जाता है, प्रेग्नेंट खातून है, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, इस किस्म की चेंज। एंड देन ये CNS वाली है जो यहाँ से शुरू होती है, दीज आर हंग डाउन, जैसे कपड़े नहीं सुखाने के लिए तार पर टांगते, तो दीज आर हंग डाउन चेंजेस एंड दीज आर सेंट्रल एंड दे आर आल्सो बेसिकली इस्कीमिक। दिमाग का जो सिंपैथेटिक ड्राइव होती है वो मायोकार्डियल इस्कीमिया कॉज करती है। बट इफ यू सी समथिंग लाइक दैट, थिंक कि इसको हो सकता है ओल्ड मैन है, मेमोरी नहीं है, गिर गया हो एंड अंदर प्रेशर शुरू हो रहा है एंड हमें पता नहीं चल रहा, तो उनको आपने हेपेरिन दे दिया पकड़ के, और से तो मसला हो जाएगा। देन ये आपकी जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ चेंज आती है सेकेंडरी, जो कि नॉर्मल है, पेस रिदम के साथ आती है जो कि नॉर्मल है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के साथ आती है जो कि नॉर्मल है, इसको स्ट्रेन पैटर्न कहते हैं। WPW के साथ मैंने आपको बताया चूंकि डीपोलराइजेशन एबनॉर्मल है, रीपोलराइजेशन एबनॉर्मल है, एंड डिजॉक्सिन के साथ इसको क्या कहते हैं? रिवर्स टिक साइन और इसका बोलना मुश्किल है। साल्वाडोर डाली's mustache, ठीक है। सो रिवर्स टिक से ज्यादा मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो साल्वाडोर डाली की मुस्ताश देखने में एग्जैक्टली ऐसी है। एंड ऑफ कोर्स जुवेनाइल पैटर्न, ये यंग लोगों में इस किस्म की चेंजेस आ सकती है, बट सी दिस इज एसिमेट्रिक। Asymmetry is normal, symmetry is bad. Are humans symmetric animals or asymmetric? Sure? दो हाथ हैं, दो हाथ हैं, तो सिमेट्री तो है, दोनों हाथ हैं। बट इफ यू लुक एट योर फिंगर्स, दोनों हाथों की फिंगर्स जो है वो मुंह का भी एक साइड कहते हैं वो थोड़ा सा बाहर होता है, राइट साइड जो राइट डोमिनेंट वाले होते हैं। तो इन asymmetry lies beauty. Okay, 36-year-old woman, uncontrolled hypertension,
started on endothelin and perindopril. BP still not controlled, overweight and sedentary, came in for routine follow-up after initiation of therapy. क्या ख्याल है? आपके ER में क्या हुआ? First, there should be ST depression, then leading to. हाँ, Hyperkalemia. हाइपरकालेमिया क्यों हो गया इसको? पेरिंडोप्रिल, ठीक है। केस इनहिबिशन के साथ हाइपरकालेमिया आराम से हो सकता है। So yes, so this is, इससे ज्यादा खराब होगा तो आपके साइन वेव बन जाएगा। So this is tall pitch narrow based waves, ठीक है। और आपका ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ हुआ हाइपरकालेमिया because QRS is also becoming wide now and इसके बाद ये और ज्यादा खराब होगा then you will not want to have what इसमें लिमिट 2 में QRS को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लिमिट 2 में किस चीज में? इसी से नहीं मतलब नहीं कर सकते QRS के कहां से कहां जा रहा है ये वाला जो है ना तो इसको ऊपर के साथ कर लो कंपेयर कर लो ये लगता है नहीं दिस इज वेरी वाइड ना वेरी वाइड लेकिन यहाँ भी T जो है इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग जो 12 वीक ECG है वो क्यों की जाती है अगर मैं आपको पीछे से तस्वीरें खींचूं आप सबकी तो will I be able to recognize नहीं वो चेहरा नजर नहीं आएगा प्रोफाइल से चीजें फर्क आएंगी फ्रंट से फर्क आएंगी इसलिए 12 वीक की जाती है अदरवाइज तो 3 डायमेंशनल एनालाइज तो 3 लीड से हो सकता है लीड 1 ऊपर से नीचे लीड V1 फ्रंट टू बैक एंड 1 जो है लेफ्ट टू राइट 3 लीड्स लगाए आपका हार्ट इलेक्ट्रिकली 3 डायमेंशनलाइज हो गया फिर 12 लीड लगाई जाती हैं यू वांट टू एक चप्पे के ऊपर आप मैप करना चाहते हैं मतलब क्या है एलबीबी का पैटर्न है नहीं हाँ मतलब कि एलबीबी का पैटर्न है लेकिन यहाँ जो ट्रांजिशन है मतलब कि नेगेटिव जो डीप नेगेटिव स्टर है वो 20 से 5 में गया हुआ है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में ये पॉजिटिव होना चाहिए तो क्लासिक लेफ्ट बंडल नहीं है लेफ्ट बंडल ब्लॉक टाइट तो बहुत सी चीजें कर देती है एंड हाइपरकालेमिया कैन डू दैट ओके जी तो ये हाइपरकालेमिया की चेंजेस हैं ये आप लोग किताबों में भी देख सकते हैं नो नीड टू दिस इज सीवियर और हमारी भी कुछ इसी तरफ बिटवीन इसके और इसके दरमियान हमारी ईसीजी है okay 24 admitted with recurrent symptoms no comorbid conditions no history of sudden death unremarkable labs normal The short QT. excellent किसने पकड़ा किसने कहा शॉर्ट क्यूटी राज उतना ही शक्ल दिखाओ शक्ल दिखाओ ठीक है ओके सो दैट्स ब्यूटीफुल ये अब हमें पता है क्लियरली सो AFIC में when I was a fellow and gone for an elective तो वहाँ एक पेशेंट आया था उससे कुछ अर्सा पहले he had this stage and by that time he had not defined this well and तो जनरल इमरान उस जमाने में कर्नल होते थे तो उन्होंने फैमिली को कहा कि इसको ICD डालना चाहिए ICD was so new at that time कि किसी ने वो यानी यंग लड़का था उसको उठा के घर ले गए again he died in his so short QT syndrome is very important. It's as bad. So short QT would be very short 300 or less जो है ना this is something as bad as a long QT because it causes torsades and can kill you. ठीक है और आप अपनी जो मेजरमेंट है आपने बड़ी ब्रिस्क रखनी है और आपको ये देखना है कि very long would be anything above so 500 से above अपने दिमाग में एक रफ नंबर रखें is serious is severe 600 is critical and between 450 in women to 500 you आप खेल सकते हैं और men में 430 and above and this is what it can cause so okay sir 130 close कर so this is second half of the T मैंने आपको बताया था उसके ऊपर PVC आई you get a polymorphic short run this is called torsades if you have a QT level which is prolonged the QT level is normal it's called polymorphic ventricular tachycardia ischemia is the most common reason for polymorphic ventricular tachycardia now torsades classically अगर मैं किसी के लिए केस बनाऊंगा ना एग्जाम में
तो मैं एक ऐसे बंदे का बताऊंगा जो गिरता है, सिंकपी होती है, फिर उठ जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर सिंकपी होती है। बिकॉज क्लासिकली दे आर एपिसोडिक, रन आएगा एंड इट टर्मिनेट्स ऑन इट्स ओन, लेकिन इतना तेज होता है 300 के ऊपर कि आप फेज आउट हो जाते हैं। Very few of these people will break into VF, and that's the sad part. लेकिन we can't predict कि वो कौन से होंगे, तो इसको हमें सीरियसली लेना पड़ता है। मैं जब डिवाइसेस डालता था कनाडा में, तो हम डिफिब्रिलेशन थ्रेशोल्ड टेस्टिंग किया करते थे, पेशेंट को VF में डालते थे, एंड देन वी यूज्ड टू शॉक द पेशेंट आउट थ्रू द डिवाइस टू सी कि ये डिवाइस काम भी करेगी या नहीं। तो हम प्रॉक्सिमल लिम्ब ऑफ द टी के ऊपर 1 जूल शॉक किया करते हैं, या 1 जूल इतना होगा, ये 1 जूल है। एक टाइम पेशेंट जो है VF में चला जाता है। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये जो बॉक्सर्स होते हैं वो चेस्ट में मारते रहते हैं ना, तो उससे क्यों नहीं होता VF? और रॉकी मार्शियानो, वन ऑफ द ग्रेट बॉक्सर्स, उसके जो पंच में 280 to 1000 जूल्स पैक्ड होते थे, वो जब चेस्ट में मारता होगा तो क्यों नहीं होता था टॉर्सार्ड्स या VF? सिंक्रोनाइज, इतने मुक्के मार रहा है, कभी तो सिंक्रोनाइज होगा ना। हाँ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आइडियली हम कंप्यूटर से रॉकी मार्शियानो का मुक्का जो है वो सिंक कर देंगे, ठीक है, उसके साथ फिर भी नहीं हो रहा, तो क्या वजह है? R वेव के ऊपर नहीं हो रहा होगा, इस वजह D वेव के ऊपर ही आ रहा है। If you study the human body, and heart तो इस सबका मास्टर है, he is a marvel। हार्ट रुकता ही नहीं है, इतना ज्यादा 3 मिलीमीटर की कॉलोनी आर्टरीज है, नॉन स्टॉप चलेगा फॉर 100 years, नॉन स्टॉप। ये जहाज भी पार्क हो जाते हैं आफ्टर पता नहीं कितने फ्लाइंग, उसके बाद रोल्स रॉयस के इंजन्स, उससे भी बेहतर है, इतना ज्यादा। कितनी टाइम बीट करता है कभी कैलकुलेट किए? इमॉर्टल्स, तुम लोग तो इमॉर्टल होता है, जवान जब होता है इंसान तो वो इमॉर्टल होता है। तो हाउ मेनी टाइम्स डज योर हार्ट बीट इमॉर्टल्स? कभी कैलकुलेट किया है? हाँ, एवरेज मीन लाइफ ऑफ 63 years of age, that's it। तो कभी किसी ने काउंट नहीं किया ना, किसी ने किया तो मुझे आई बी इम्प्रेस्ड। तो 2.4 प्लस बिलियन टाइम्स। अगर आप सबसे अच्छा होस्ट जो है वो फायर ब्रिगेड का होता है, उसमें से भी पल्सेटाइल फ्लो 2.4 बिलियन टाइम्स निकालें तो मेरा ख्याल से 6 दिन में फारिग हो जाएगा, हार्ट नहीं होता। सो एवरीथिंग इज वेरी, चेस्ट वॉल जो है, चेस्ट रिब केज जो है, इज अ शॉक अब्सॉर्बर ऑफ द बेस्ट काइंड। हम वो मैं सबको वाकई सुनाता हूँ, मैं हम माय नेम इज खान, उसमें एक सीन है जिसमें फुटबॉल पूरे बच्चे मारते हैं, उसके लगता है वो गिर जाता है, तो मेरे साथ मैंने उसको इम्प्रेस करने के कम ही और वाकई मिलते हैं, तो यहाँ करता हूँ मैं, क्योंकि मेरी फील्ड है, मैंने फिनोमेनन। बाद में उसका स्प्लेनिक रप्चर गलत उन्होंने मेडिकल एडवाइस, ठीक है। तो शॉर्ट क्यूटी याद रखना है, डोंट मिस दैट। एंड टॉर्सार्ड्स और पॉलीमॉर्फिक if it's 62 woman fever with chills treated by a GP with azithromycin and meter. Now palpitation and severe disease. Very good. ठीक है, so look at this. I want to RR interval को, the Q interval is more than half of the RR interval, तो सब देखने में पता चल जाएगा। बट अगर इस किस्म की हिस्ट्री है, ये तो यहाँ बहुत ओपन मैंने दिया है ना, यू शुड बी एबल टू पिक द अक्यूटी। मैं तो हमेशा कहता हूँ स्टार्ट विद अक्यूटी इंटरवल। पहला इंटरवल जो है ना, मेहनत करके क्यूटी इंटरवल देख लो और मेजर तो यू विल बिकम अ सेफ फिजिशियन। मेरा एक था वेरी एस्ट्यूट क्लिनिशियन, हम लोग उस जमाने में तैयारी कर रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। आ गया, हमने कहा इसको जरा टेस्ट करते हैं, तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा एक शॉर्ट केस है, आप आ जाएं। तो वो आ गया, आया, उसने आगे यहाँ हाथ रखा, कहा डेक्स्ट्रोकार्डिया, वॉकड आउट।
शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा यार ये तुमने से कहा ये तुमने किस तरह से किया, तुम्हें पता था? कहता नहीं, पहली दफा देख रहा हूँ। कहता मेरी आदत है, आई ऑलवेज प्लेस माय टू मेक श्योर कि डेक्स्ट्रोकार्डियम, ये मेरी अपनी, and I was impressed. So this is the natural ability. क्योंकि इंटरवल कैलकुलेट करने का एक जो ये कहते हैं कि R to R के मिड में अगर T वेव डाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ ECG पे अप्लाई हो सकता So ये वाला जो मैंने भी ये QT इंटरवल जो है, हाफ ऑफ द QT हर उसमें हो सकता है, लेकिन रिमेंबर अगर इरेगुलर बीट है QT इंटरवल चेंज टू बीट, तो अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपको 6 निकालने चाहिए, एवरेज आउट करना चाहिए। और मेजर आपने जो है हमेशा लॉन्ग QT में आमतौर पे अगर यू में तो 7 दे देता है, तो यू नीड मिला हुआ आपस में, लेकिन उस यू हैव टू मेक श्योर दिस इज ग्रोसली एनालिसिस में, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं। ओके, तो ये तो खैर ड्रग्स वगैरह हैं, एक्वायर्ड है, एंड 1 2 3 इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। एंड QT में तो QT3 और उसके बीच में ST7 एंड में आती है, ये बाइफेजिक होती है और ये पूरे का पूरा जो है अब वो हुआ है। इसमें से जस्ट मेक श्योर कि जब भी पेशेंट हो उसको स्टार्टर नहीं करें, अलार्म के साथ नहीं, नींद में, स्विमिंग में, सडन बर्स्ट एक्टिविटी में, ये वाली चीजें जो, एंड दे डाई लाइक अ क्लॉक। 17 साल की उम्र में मरी थी तो 16 साढ़े 16 17 साल की उम्र में भाई मर, I've killed one patient, so I can tell you that in my care she died, and despite the fact कि उसको सारा मेजर किया होता, सब चीजें, पूरी फैमिली है, फिर उसकी जो दूसरी वाली यंगेस्ट पेशेंट इन पाकिस्तान 13 साल की उम्र में, अभी शी इज प्रेग्नेंट, अपने कजन से शादी की। तो बाप को कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कहता नहीं और क्या करूं मैं, तो उसकी शादी कजन से हुई। शुक्र बेटे बच्चे का मैंने ECG कराया, उसको लॉन्ग QT नहीं, पूरी फैमिली बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर है। इसको जब मैंने डाल दिया 1.5 साल तक शॉक नहीं पड़ा, मैंने कहा गलत डिसीजन हो गया, देन had an appropriate shock. Okay, second last, 78 man epigastric pain off and on for 3 days, mild at rest, first episode relieved with nitroglycerin, his diabetic, intensive, cigarette-free, ex-smoker, in PPI for discomfort. ठीक है, chest pain आपके लिए खाली पिक करना है, लेकिन यू वेव ये मैंने मार्क सुनी है, यू वेव जो है ये उल्टी हो गई है, ठीक है। सो जस्ट मेक एन एफर्ट, व्हेनेवर हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कार्डियक हिस्ट्री टिपिकल क्या होती है? टिपिकल कॉरोनरी हिस्ट्री, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, ठीक है, और लेट्स से अगर एक्सरसाइज में नहीं हुआ, रिलीव विद GTN, एसोफेजाइटिस का पेन भी हो जाता है, एसोफेजियल स्पैज्म भी जो है वो खत्म हो जाता है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस। इंटेंसिटी क्या होगी, कैरेक्टर क्या होगा, सेंट्रल चेस्ट पेन, रेडिएशन टू बिल्कुल में लेफ्ट आर्म व्हिच इज नॉन स्पेसिफिक, राइट आर्म नॉन स्पेसिफिक, both arms more specific, jaw more specific, intensity क्या होती है, on a scale of 0 to 10, 5 to 6, excellent, so it's going to be such a moderate to mild to moderate pain के वो अस्पताल ही नहीं आएगा, वो PPIs देता रहेगा घर में बैठ के, समझता होगा कि मुझे वो है। So once you get this typical pain, then get hold of the ECG, ठीक है, and read it. Okay. Okay, so basically आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ECG फीचर्स लेने हैं, देन यू गो फॉलो द PQRST, उसमें 13 14 15 ये जितने भी 20 कंडीशन मैंने बताए, अगर आज आप सिर्फ जाके PQRS के ऊपर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो यू विल हैव बेनिफिट। ओके, ये जो है ये मैंने ऐड की है ओरिजिनल टू माय ओरिजिनल SVD, क्या बात है यार, जब किसने कहा था SVD, वेरी गुड, तुमने कहा था, दैट इज लाइक तो नी जर्क वाला स्पॉन्सर बड़ा अच्छा है, इट्स अ नैरो कॉम्प्लेक्स फास्ट, इसका क्या डिफरेंशियल है,
एक तो एसपीटी बना ली। एसपीटी दो किस्म के होते हैं ना लार्जली, एबी नोडल रीएंटर जो एबी नोड के बीच में रीएंट्री हो रही है, और एक एबी रीएंटर टैकीकार्डिया एक्सेसरी पाथ से, जो मैंने आपको बताया था दो किस्म के होते हैं। ऑर्थोड्रोमिक जो नॉर्मल नीचे जाके ऊपर आते हैं, और एंटीड्रोमिक जो वाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बीटी के डिफरेंशियल में होते हैं। तो एबीएनआरटी हो गया, ऑर्थोड्रोमिक एबीआरटी हो गया, एट्रियल टैकीकार्डिया हो गया, फ्लटर हो सकता है। हाँ, 1-to-1 एडल्ट्स में 1-to-1 फ्लटर कंडक्ट होते हैं, कितनों ने देखा है? पेट में बहुत रेयर और पीडियाट्रिक्स में इतना रेयर नहीं है। पीडियाट्रिक्स में याद रखना कि VTs आर better tolerated than atrial tachycardias because वो फ्लटर भी 1-to-1 कंडक्ट कर जाते हैं, बहुत तेज होता है एबी नोड। 2-to-1 तो हो सकता है, 2 हाँ। तो इसका रेट क्या है? इसका तकरीबन 280 के करीब है। तो जब 280 आ जाए तो फ्लटर 1-to-1 कंडक्शन हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में 2 फ्लटर्स देखे हैं जो कि एडल्ट्स में 39 ईयर ओल्ड था, 1-to-1 कंडक्ट किया, उसका ट्रोपोनिन्स लीक हुए, उसको चेस्ट पेन हुआ, उसको पसीने आ गए, तो क्लिफ्टन में आ गया था क्लिनिक में। मैंने भेजा उसको आईवी लगाने के लिए, तो मैंने क्लिनिक खत्म की, जाके देखा तो आईवी नहीं लगा रहे, कहते लग नहीं रहा। फिर मैंने उसको आईवी लगाया, फिर उसको दवाएं वगैरह दी, तो जाकर कंट्रोल हुई। यहाँ आया तो उसको ट्रोपोनिन्स आसमान भी चढ़े थे, एलवी नॉर्मल था, कोरोनरी इज नॉर्मल। सो ये फ्लटर है। Well, we don't know. It's just a We narrow don't know. complex So thing. differential, इतने तेज टैकीकार्डिया के ऊपर आप डिफरेंशियल्स कर सकते हैं। और फिर सबसे अच्छी चीज एडेनोसिन या कैरोटिड साइंस के साथ, इतना तेज तो कैरोटिड भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एडेनोसिन गुड, एडेनोसिन 6 मिलीग्राम with 20 cc push raised with cubital, उससे ये या तो ब्रेक हो जाएगा और या स्लो होगा। जब स्लो होगा, स्लो इजी ब्लॉक होगा, तो ये बढ़ेगा, तो उसमें आपको शॉर्ट इंटरफेरेंस आ जाएगी। ठीक है, सो ये आपकी बिल्कुल सही आपने कहा। एसपीटी, एबी, एनआरटी, ऑर्थोड्रोमिक एबीआरटी, एट्रियल फ्लटर विद 1-to-1, एट्रियल टैकीकार्डिया। नॉर्मल हालात में मैं एट्रियल टैकीकार्डिया को ऊपर रखता और एट्रियल फ्लटर को नीचे रखता, बट चूंकि ये रेट 280 के करीब गया हुआ है, तो मैंने एट्रियल से ऊपर कर दिया, क्योंकि एट्रियल टैकीकार्डियास की जो, जैसे मैं आपसे कहूं मैंने ऑल्टो आज 300 किलोमीटर पर चलाई, कितने लोग मानेंगे मेरी बात? सही ना, बिकॉज़ उसकी स्पीड ही नहीं की जा सकती। तो एट्रियल टैकीकार्डिया 250 टॉप्स, और वो भी बहुत ही यंग लोगों में चला जाएगा। फ्लटर इजीली जा सकता है, मोस्टली डोमेन। ठीक है, सो दैट्स वेरी गुड। मैंने 2 मिनट थैंक यू तो कर दिया, अभी तो ये है, क्या ख्याल है? हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में जितनी कर सकते। फ्लटर है, वेरी गुड। ठीक है, तो फ्लटर ये है कि शॉर्टली मटेरियल सारी, एंड look at the P wave. P to P interval is one large gappa. That means 300 beats per minute पे atrial rate चल रहा है. So this is flutter. Anything between 250 to 350 is flutter. Anything above 350 up to 600 is atrial fibrillation. Good. And but this is a high grade block. Flutter 2-to-1 conduct करता है normally. अगर AB node disease हो तो इस किस्म की slow conduction होगी. Then you have PECs coming in between. Good. हाँ जी, यहाँ क्या ख्याल है? This is the tachycardia. This is the tachycardia and this is the termination. ये आपकी ER में होगा। SPT है, तो ठीक है, तो आपके लिए SPT है जो टर्मिनेट हो गया। बट अगर SPT की P वेव जो है, जो रेट्रोग्रेड P पे नीचे से जा रही होती है, क्योंकि वो माइक्रो रीएंट्री होता है AD नोड में, तो A और B को करता है। तो ये जो है क्यूआरएस के अंदर या उसके बिल्कुल नीचे आ जाती है, ये जो मार्क है। जब ये टर्मिनेट हो जाता है, आप देखो ये राउंड हो गया, ये जो शार्प वाला स्क्वेयर है, ये वाला, ये खत्म हो गया। सो दैट टेल्स यू ये वाला जो स्क्वेयर है P, अगर ये P इधर है तो दिस इज AB नोडल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया डायग्नोस्टिक। अगर AB रीएंट्रेंट होता तो एक्सेसरी पाथवे में मैक्रो रीएंट्री होती है ना, लंबा टाइम लगता है, एटलीस्ट 130 मिलीसेकंड्स लगते हैं। तो P वेव आपकी यहाँ हो, एक बार ये सेटल वो है, SPT आपने पिक कर दिया, बहुत अच्छा। अच्छा जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, सो स्टेटस पोस्ट कैबेज है, आप सीख गए 95% चांस है। इट इज वाइड कॉम्प्लेक्स रिदम, जिसमें आपका जो एक्सट्रीम मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेरी फास्ट,
इससे ज्यादा तेज होगा तो ये फ्लटर में वेंट्रिकल फ्लटर में चला जाएगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, शायद इस पे भी हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाए बिकॉज़ वेरी फास्ट। देखो रेट इसका भी जो है तकरीबन 280 तक जा रहा है, इट्स वेरी वेरी फास्ट, पर अच्छा पिकअप है। व्हाट अबाउट दिस 34-year-old woman, small PDA with shortness of breath, EF is 17% and the right ventricular systolic function is moderately reduced. What is the diagnosis? अब पता चलेगा। So is it sinus rhythm? That is the question. Sure? अब मैं आप लोगों को कहूँगा you all your left thumbs and left thumbs काट दीजिए। तो आप redeem कर सकते हैं with a good answer before we close. क्या अच्छा देखो is it sinus rhythm or not? Look at V1. Look at V1. What do you think? सही है, तो आंख में प्रकार लगा हुआ है। So look at the look at here. ये देखो, this is one P and another P. Now the question is this flutter or is this fibrillation? Rate पे depend करता है। That's very good, and that's why although the RR intervals are quite regularly irregular, which goes more in favor of atrial flutter, but the rate जो मैंने इसका calculate किया है is around 160 milliseconds, which makes it the rate is around 400 beats per minute, which pushes it into atrial fibrillation. So ये मिसाल देने की सिर्फ जरूरत ये थी कि it can be flutter fib, और पुरानी literature में flutter fibrillation कहा जाता है. It's not a good way to express. Sometimes atypical flutters can happen, जो कि छोटे से re-entry में आ सकते हैं. Usually flutters are macro re-entrant in the RA or LA. अगर कहीं scar पड़ा हुआ है और छोटा वो घूम रहा है की जगह पे तो तेज हो सकता है, and it can kind of give us the impression कि atrial fibrillation है. I would call this atypical flutter because RR interval is very regular, जो मैंने आपके लिए measure भी किया, ठीक है. नीचे वो जो लाल लगे हुए बिल्कुल डॉट मेजर हो रहा है. Okay, good. What about this? History कोई नहीं है. Narrow complex, regular, SVT, very good. ठीक है. So you can't see P waves. When you can't see P wave, it's SVT. And look for P waves. तो ये मैंने arrows लगाए हैं. ये आपको P का कहीं यहाँ भी है, इधर भी है. So AB and RT is more likely. What about this? ये तो आप valence, excellent. बहरहाल this is not valence, but I'm happy that you called it valence. History कोई नहीं है. अगर chest pain नहीं होगी तो can't be valence. इसको chest pain नहीं है. और क्या possibility हो सकती है? LVH. हाँ, गुड. किस किस्म का LVH? एक तो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और भी किस्म की होती है ना, एपिकल हाइपरट्रोफी भी होती है, एक एपेक्स के ऊपर हाइपरट्रोफी हुई है. तो दिस इज क्लासिक ऑफ दैट, ठीक है. एंड दिस इज उसको एपिकल को कहते हैं यामागुची एपिकल हाइपरट्रोफी, एंड दिस इज द क्लासिक पिक्चर ऑफ यामागुची. ये हमारा ही है, हमारा अपना पेशेंट है. मैंने बहुत सारी जो आपको ECG मोस्टली हमारी अपनी है. उफ, ये बहुत अच्छी है. इसको अगर कोई फिलोसॉफिकली या रोमांटिकली पढ़ेगा तो बहुत फायदा होगा. What hits you in this ECG? Excellent. एक चीज है low voltage QRS इधर से आ रहा है. और क्या हिट कर रहा है? सेकंड चीज क्या हिट कर रही है? जब मैंने इसको पहली दफा इस ECG को देखा था तो मैंने कहा ये तो लो वोल्टेज ECG है. And then I looked at the P waves. Look at the P waves. No, P wave voltage कैसी? Excellent. क्या अगर P wave voltage normal हो या above हो, R wave voltage loss हो रही है, तो इसका मतलब there is some kind of cardiopathic process involving the ventricles. Whereas the LV voltage is carried on.
So this is a very beautiful example. ये देखो यहाँ normal P's हैं with practically a blip of a QRS. यहाँ normal left atrial abnormality लग रही है क्योंकि सारा negative है और उसके साथ का QRS is non-existent. Okay, very good. So this is arrhythmogenic right ventricular dysplasia on CMR. This is one of my patients and ये यही हुआ था. And इसके बीच में this was usually ARVD जो है वो एक साइड पे होते हैं ना RV ARVD. ये इसका राइट वेंट्रिकल भी फॉल्ट था, इसका लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन भी डाउन था, उसमें भी फाइब्रोफैटिक चेंज थी. That's why the patient had lost all voltages. So at least at में भी इसी तरह नहीं हो सकता क्या चीज मतलब QRS कॉम्प्लेक्स किसमें? पेरिकार्डियल नहीं पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर होगा तो उसमें सब चीज ओवरऑल वोल्टेज होगी क्योंकि आप जो देख रहे हैं उसमें डिस्टेंस में बीच में पानी आ जाएगा. यहाँ ये है कि यहाँ QRS कॉम्प्लेक्स अगर there is a discordance between the expression that means कि chamber involved. तो I am very happy कि आप लोगों ने ये दोनों changes जो है appreciate किए हैं. Then you think and you don't need to be a scientist to think. मेरी बेगम भी पिक कर लेती है वाली चीज. ओके क्या ख्याल है? तो टाइम क्योंकि कम है, I want you to appreciate that there is a P before this QRS, then there is no P, P, no P, P, no P, P. This is extreme sinus node dysfunction जिसमें sinus slow होता है, यानी कि sinus का जो रेट है वो तो ये वाली sinus beat आती है and ये वाली जो है junctional beat आती है. Wherever there is sinus node disease, junction tends to pick up. ठीक है, there is a relationship between sinus and AV node. It's not well studied, but बहुत सी दफा sinus ठीक होता है, AV node खराब होता है, थोड़ी देर बाद आप पेसमेकर डालते हैं तो देखते हैं कि sinus भी बैठ गया. So there is a loop that works on both. Okay. हाँ जी, क्या ख्याल है? 24-year-old woman with pregnant and palpitations and wide complex tachycardia. अच्छा, ये भी आप लोग शायद नहीं पिक कर सकेंगे. जब भी एक 24-year-old लड़की में जिसको नॉर्मल एलवी फंक्शन है, राइट बंडल लेफ्ट एक्सिस का टैकीकार्डिया आएगा, इट्स फेसिकुलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या इडियोपैथिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. और इसको प्रेगनेंसी में इतना वो तंग कर रहा था और आपकी ईआर में आती थी हाँ मैसेज कोई फेसिकुलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? मिराकल देते तो कैसे देते? अगर पता आज मुझे इडियोपैथिक बीडी होता है, मैं आपके पास आके लेट जाता हूँ तो मुझे कैसे दोगे? लगाओ, इसका मतलब कभी किसी ने नहीं दिया. एक्सेलेंट, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ क्यों स्लोली देते हैं? अगर मैं बिरयानी 6 घंटे दम पे चढ़ा दूंगा तो दुनिया में हर जगह उसका भट्टा बन जाएगा. सो यू गिव 10 मिलीग्राम पुश, नीट पुश, तब जाके वो ब्रेक होता है. अच्छा, ये मुझे कह रही नहीं विराफामिल दे रही है यार, मैं विराफामिल दे रही है यार, मैं वो जा नहीं रहा. स्टोरी देखा कितना रेजिस्टेंट है ये खातून, जिसको मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रहा था. फिर सीसीयू में आई, फिर हमारे भाई भी वो वैसे ही दे रहे थे. मैं अंदर पहुंच गया तो देखा कि वही अपना आराम से बैठ के कुर्सी पे जा रहा है. क्या कर रहे हो? दे रहे, पता नहीं कितना दे दिया था. मैंने उसे पकड़ा, पुश, ब्रेक हो गया. अच्छा, दिस वंस यू ब्रेक, अब इसको ब्रेक हुआ ना, अब ये वाली चेंजेस आ गई. अब आप भगा देंगे सबको, ट्रोपोनिन भी कराओ, बुला लो इसको, तो एनजीओ होनी चाहिए, कुछ शायद एनजीओ भी कर दे शील्ड रख के, जिसकी जरूरत नहीं है. Whenever you get a tachycardia, ventricular tachycardia, and इसको बहुत देर रह रहा था, if that happens and that tachycardia terminates, या अगर किसी को WBW है जिसकी एक्सेसरी पाथवे से कंडक्शन नीचे जाती है, आप उसको अबलेट कर देते हैं और अब वो कंडक्शन खत्म हो जाती है, तो वहां टी वेव चेंजेस आ जाती हैं, डीप टी वेव इन्वर्जन्स हो जाती हैं. इसको मेमोरी टीज कहते हैं. These are normal. तो अगर मैंने किसी का अबलेशन किया हुआ है और 2 दिन बाद आपके पास इन चेंजेस के साथ आता है, प्लीज डोंट रश द कैथ लैब. और इसी तरह से अगर किसी को पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आपने विराफामिल दिया और टर्मिनेट हुआ और ये चेंज आ गई और से चेस्ट पेन नहीं हो रही, आराम से लेटी हुई है, डू नॉट वरी अबाउट इट. दीस आर मेमोरी टी वेव. किसी भी जगह एबनॉर्मल कंडक्शन का टैकीकार्डिया होगा, किसी को लेफ्ट बंडल ब्रांच भी बहुत टैकीकार्डिया में रेट रिलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है. अगर वो चला हुआ है
और लेट्स से 6 हफ्ते चला है और अब आपने किसी तरह से उसको टर्मिनेट कर दिया है, मेमोरी डी आ गई, ये याद रखो। तो इसमें एक्सेस डेविएशन है। इसमें नहीं, 1 और 2 दोनों बराबर है, नॉर्मल है, एक्सेस डेविएशन नहीं। अच्छा जी, अच्छा ये सिर्फ ये दिखाने के लिए ये होल्डर ट्रेस है, लेकिन आपके पास जब ईआर में पेशेंट आता है, यू हैव दिस प्रिविलेज, जो मैं देखता हूँ कि आप लोग कभी भी उसकी इनिशिएशन और उसकी टर्मिनेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसमें वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये साइनस बीट आ रही है, दिस इज अ साइनस बीट, साइनस 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 एंड देन यू गेट अ पीवीसी। ठीक है, पीवीसी के बाद ये जो नजर आ रही है ये उल्टी, ये प्रेमेच्योर एपियल बीट है, जो कि बिकॉज ऑफ दिस क्यूआरएस एवी नोड रिफ्रैक्टरी है, तो बहुत लंबे पीआर इंटरवल के साथ नीचे गई है एंड देन ऊपर आई है, और फिर फास्ट पाथवे से ऊपर आई है, स्लो पाथवे से नीचे गई है, फास्ट पाथवे से ऊपर आई है। हाउ डू आई नो फास्ट पाथवे से ऊपर आई है? ये जो ब्लिप है, दिस इज द रेट्रोग्रेड पीरियड और 1-to-1 प्रोडक्शन शुरू हुई, दिस इज एसपीटी, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड इन द लैब। मैंने ये एवी नोड ये रिपोर्ट किया था एज इनिशिएशन ऑफ एवी नोडल रीएंट्रेंट टैकिकार्डिया विद अ पीआर इंटरवल जंप, ये क्लासिक वो है। और अगले इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ने बुला के और कुछ नहीं किया, सीधा अबलेट किया, दिस वाज होल्टर बिकॉज ऑफ प्रॉपर रिपोर्टिंग। जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ये इनिशिएशन है, सो इफ यू गेट इनिशिएशंस और टर्मिनेशंस, 3 चीजें टैकिकार्डिया में देखनी होती है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन एंड द बॉडी ऑफ द टैकिकार्डिया, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो वाइटल होती है। ओके, इसको छोड़ देते हैं फास्ट फ्लो पाथवे को। ये एक और एग्जांपल थी जिसमें आपका 17 साल के बंदे का एएसटी रिपेयर होता है, एएसटीज वगैरह रिपेयर होते हैं, आरए फाइब्रोज्ड होता है या सर्जरी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, these inverted P waves were coming very close to the QRS, तो ये जंक्शन या लो साइनस रिदम हो गया था, क्योंकि ऊपर वाला जो साइनस कितना बड़ा होता है आपके ख्याल में? बटन होता है छोटा सा या बड़ा मॉन्स्ट्रस स्ट्रक्चर होता है? बटन, हाउ मेनी फॉर बटन्स? अच्छा, उसका एक हेड होता है, फिर एक बॉडी होती है, फिर एक टेल होती है, और वो टेल समटाइम्स कोरोनरी साइनस के अंदर तक करीब तक जा सकती है। So some people will have respiratory arrhythmia जिसमें P waves बड़ी होगी, छोटी होगी, फ्लैट हो जाएगी, फिर बड़ी होगी, रेस्पिरेटरी उसके साथ, तो वो ऑसिलेट करता है बिटवीन द हेड एंड द टेल, जो इंपल्स होती है। तो साइनस बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, छोटा नहीं होता। ठीक है, तो हो सकता है ये नीचे से निकला हो। ओके, चलो ये तो एसटी एलिवेशन इंफीरियर वाली आपने वो पकड़ी हुई है, एंड ये आपकी राइट साइडेड लीड कराई है, तो यू हैव एसटी एलिवेशंस ओवर हियर। सो ये आरबी इन्फार्क्ट भी है, ये बहुत अच्छी है। What is this? And what is this beat? And what is this beat? ये खास, ये हमारे during a capture excellent। किसने कहा capture? किसने कहा capture? किसने कहा? दोनों ने एक साथ कहा है, वेरी गुड। तो कैप्चर कौन सा, फ्यूजन कौन सा है? फर्स्ट वाली कैप्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो है फ्यूजन है, सेकंड वाली कैप्चर है, बिकॉज देखो ये नॉर्मल PQRST है और ये P इज मर्जिंग विद दिस स्लर्ड QRS। रेट इसका जो है ये स्लो है, और ये पेशेंट था कैबिज हुआ हुआ था, इसका एक अक्लूजन हो गया था ग्राफ्ट का टू द OM, एंड वी हैड ओपनड इट अप एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड, एंड ये वाला रिदम आया तो मैंने पकड़ लिया, बिकॉज दिस डिस्क्राइब्स ब्यूटीफुली an accelerated idioventricular rhythm with a capture beat and a fusion beat, जो आप बीटी में भी देखेंगे या स्लो बीटीज में देखेंगे, या आइडियाज में भी हो सकता है। ठीक है, normal looking beat is the capture beat, and hybrid between the wide QRS and the narrow is the fusion beat। यहाँ क्या होगा? Back to the initial slide। नहीं, अभी WPW नहीं कर रहा है। So pause है, माना pause के बीच में P है, P वक्त पे आएगी, ओके। तो P से पहले जो PR इंटरवल है, WPW किसने कहा था?
किसने कहा था WPW? वेरी गुड, ठीक है, है WPW। देखो ना डेल्टा स्लर है। सो इस पेशेंट की हमारे पास नहीं, शहर में किसी और जगह एब्लेशन हुई थी जिसमें उन्होंने उसको एक्सेसरी पाथवे को छोड़ दिया था और नॉर्मल पाथवे को ट्राई कर दिया था। तो अब ये है कि, और ये डॉक्टर साहब की बेजौजा है, और वो जब आते हैं डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर बैठते हैं, वो खूब जलील करती हैं उनको मेरे सामने। कोर्स होता है उनके एवरी 6 मंथ्स के बाद कि उन्होंने कहा कराओ, मैं कह रही नहीं करा। सो इट्स ऑलवेज इम्पेरेटिव कि जो कराने वाला हो उसको उसका कंसेंट होना चाहिए। तो ये जो है ना, उन्होंने एक्सेसरी पार्ट में रहने दिया। अब क्या हो गया है कि जो नॉर्मल वाला कंडक्शन है वो उड़ गई है, और जो एक्सेसरी पार्ट में है वो भी बेचारा डैमेज हो गया हुआ है। और ये है कि ये एबी ब्लॉक है, एक्सेसरी पाथवे का एबी ब्लॉक। एक्सेसरी पाथवे में मोबिट शोबिट्स नहीं देखा जाता, वो या कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो दिस इज दैट, एंड शी विल रिक्वायर अ पेसमेकर। ये कब जब रात को सोती है तो कंप्लीट एबी ब्लॉक में चली जाती है, तो जंक्शनल एस्केप निकल आता है। चूंकि रिलेटिवली यंग है, जंक्शनल एस्केप अच्छा निकलता है। थैंक यू। कोई सवाल? So don't have to remember everything, but take the concepts on board। एक स्लाइड के ऊपर जो चीजें दी गई हैं, जैसे कॉज आया, कॉज को कैसे असेस करते हैं, वाइड कॉम्प्लेक्स है तो उसके क्या डिफरेंशियल है, कोई 3-4 है, और नैरो कॉम्प्लेक्स है तो उसके क्या डिफरेंशियल है। ठीक है, सिंकोपी के साथ कोई आता है तो कौन सा इंटरवल मेजर करना है, कौन सी 4 चीजें हैं और 5 चीजें आपको मेजर करनी है। ठीक है, Thank you so much, sir. We are grateful for your precious time, and I hope you enjoyed this entertainment a lot. So I will thank you on behalf of Dr. Madhya Ismail and Dr. Manvi. my pleasure। And thank you again. No, I always enjoy good crowd, and आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए। बट आप कैसे दोगे वेसिकुलर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया आएगा जब any young person with a left axis deviation बराबर में 10 मिलीग्राम। मेरे उस्ताद असद पठान ने, तो उसका वाकया आपको सुनाता हूँ। वो आया उसका ब्लड प्रेशर 80-50। मैंने उस जमाने में मोबाइल नहीं होते, मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके IV 5 मिलीग्राम मेटोप्रोल पुश दे दो। मैंने कहा सर 80-50, अब उस्ताद को चेक नहीं करना चाहिए। एक्सपीरियंस बेतहाशा था एंड ब्रिलियंस आसमान से निकल रही है बाहर। तो मैंने कहा ये पुश, तो कहते डर गए। मैंने कहा नहीं, देता हूँ। गया, मैंने सबको IR में जमा कर दिया। मैंने कहा उस्ताद की बात को देख लिया, पुश किया, टर्मिनेटेड द SVT प्रेशर्स ऊपर आ गया। तो a lot of times the experience जो है ना, जिस बंदे ने अपने 10,000 आवर्स पूरे किए हुए ना, उसकी बात मान गया। बिकॉज अगर उसने सही तरीके से काम किया हुआ तो he will guide you to do the right thing। and अपने अंदर करेज पैदा करें, चैलेंज दिया करें। कभी भी इफ आपका कोई प्रोसीजर का 10 मिनट है तो उसको 9 करने की कोशिश करो। क्वेश्चन फॉर एक्सीलेंस ऑलवेज।